Good morning, Malik, Tod Malik. Okay, Malik. So, good morning. Hopefully everybody is doing good. And आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर होंगे मालिक. तो भारत माता की. तो basically what we have discussed yesterday was what is how the strategy should be. So we are already clear. Strategy should be proactive as well as reactive. If I ask you a question, what is a better in proactive and reactive? The answer will be proactive. But if we ask or we discuss like this, okay, which is a better combination as such, so it will always be the answer. The answer will always be blend of proactive and reactive. So first of all, you need to understand the concept. Can strategy be proactive? Answer is yes. Can strategy be reactive? Answer is yes. So I'm just asking a question. Suppose I am an organization where I take the decision by doing the analysis. I do the market research, I identify the consumer requirement, I focus on consumer expectations, and after that I develop a product. This concept or this strategy mechanism is called, okay, so this strategy mechanism is called proactive. It is called proactive. Yani what I am doing, I am developing a product based on customer expectation. Therefore, this concept is called proactive in its approach. One of the competitor of mine, okay, who does not do innovation, he only copy me, imitate me. Once I launch the product, he brings the product accordingly. Once I launch one more new product, he brings the new product again. His approach will be reactive or proactive? Reactive. So, to what he is reacting? Competitor. Example, I am his competitor. He is reacting to my strategy. Therefore, it is called reactive. So, proactive or reactive, ये concept अपन ने समझा. Okay. To the extent, suppose today I am telling you I will be doing analysis, I will be identifying customer expectation, I will be focusing on customer requirement, I will be focusing on legal requirement, I will be focusing on political requirement, and after that I will be developing a product. So 101% your answer is proactive. I hope this point is freezed. But what about my experience? Example, I am telling there is an experience with me. Example, I have done the work many times. I developed the product many times. I am being an experienced person. Okay, I may be having some know-how. Know-how matlab some technicality. Okay, I may be having some innovation concepts in my mind. Example, right now, agar मैं बोलूँ, okay, what is proactive का meaning? What is the proactive का meaning? Remember this. Proactive means I will be doing the analysis and after research and analysis, I will be developing a product. Okay, and what is the reactive? Something happens in market. Based on that, I am developing a product. Okay, see, understand, sometimes you may get mixed up. सर फिर reactive भी तो proactive जैसा ही हुआ कि भाई market में कुछ change हुआ और हमने react किया. मतलब it is like analysis only. Analysis करके हमने पहली बार product launch करना is proactive. Example, if I discuss like this, Apple और Samsung किसने पहली बार okay touch screen innovation वाले concept निकाले? It is an Apple. Samsung ने क्या किया? कॉपी नहीं, मतलब कॉपी मतलब मार्केट में ऐसा आया एंड इट इज अडेप्टेड बाय पीपल. देयरफॉर सैमसंग बोला कि भाई हमको भी ये लॉन्च करना है एंड सैमसंग कॉन्टेक्स्ट केम इनटू पिक्चर एंड सैमसंग इज नाउ बीइंग अ कॉम्पीटिंग लीडर विद एन एप्पल. अच्छा, आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर सैमसंग फोल्ड. तो जब सैमसंग फोल्ड पहली बार मेरे हाथ में आया था समथिंग अराउंड 2019, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डेट, पर 19-20 की बात थी. फोल्ड जब पहली बार लॉन्च हुआ था 18-19 की बात थी. जब पहली बार आया था, आई वॉज जस्ट लुकिंग आउट द फर्स्ट फोल्ड फोन. आई वॉज जस्ट मतलब वो प्रेस कर रहा था और बेंड कर रहा था. मेरे लिए ये था माँ कसम कांच फोल्ड हो रहा है यार. इट वॉज लाइक इमेजिनेशन के बाहर कांच फोल्ड हो रहा है. मतलब सिंस चाइल्डहुड वी हैव अंडरस्टूड ओके ये सीधा होता है, अगर इसको फोल्ड किया तो टूटेगा. और जब पहली बार देखा कांच फोल्ड हो रहा है, इट वॉज लाइक भाई मतलब इट वॉज इमेजिनेशन के बाहर. इट वॉज लाइक ड्रीम कम ट्रू. अरे माँ कसम द थिंग्स हैव चेंज्ड. टेक्नोलॉजी कैन डू एनीथिंग. एंड डेफिनेटली ओके टिल डेट आई डू थिंक आपको मालूम होगा फोल्ड वर्जन्स के उनके कितने वर्जन्स आ गए हैं. ऑलमोस्ट फोल्ड का उनका 5th या 6th वर्जन चल रहा होगा. फर्स्ट थिंग. सेकंड, उनका इमिटेट करके और फोल्ड किसने निकाला है? वीवो ने, रियलमी, ओके इन्होंने निकाला है. एप्पल कभी फोल्ड में आया क्या? क्यों नहीं आया? नहीं, एक पैटर्न है पर ठीक है, पर व्हाई एप्पल इज नॉट इन द फोल्ड? अच्छा, उन्होंने एनालिसिस, अच्छा फोल्ड का सेल्स नहीं है. फोल्ड का सेल्स नहीं है 100% है ना. ओके, फोल्ड का मार्केट शेयर भी है. अगर एप्पल निकालेगा तो डोंट यू थिंक ही विल आल्सो गेन सम मार्केट शेयर?
भाई साहब वाह वाह, मतलब इसका मतलब तो एप्पल इज नॉट प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव ऑल्सो। एप्पल तो बोलता भाई मैं तो अपनी जिंदगी वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं यार, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है। डू यू थिंक एप्पल विल बी डूइंग लाइक दिस? तो मेरा क्वेश्चन है व्हाई एप्पल इज नॉट इन फोल्ड? एनी आइडिया? एनी आइडिया? हाँ, दे विल ट्राई समथिंग एल्स। एक कॉन्सेप्ट आया, दे विल ट्राई समथिंग एल्स। ओके, अभिनव बोलता अभिनंदा बोलता है, अभिनव बोलता है भाई नॉट रिएक्टिव। रिएक्टिव नहीं है मैं समझा, पर डू यू थिंक एप्पल लाइक अ कंपनी विल नॉट बी रिएक्टिव? डू यू थिंक एप्पल लाइक अ कंपनी विल नॉट रिएक्ट टू द एनवायरमेंट? नहीं भाई, रिएक्टिव रहेगा। अच्छा एग्जांपल देता हूं रिएक्टिव का। ओके, मेरे को बताओ एप्पल 16, एप्पल 15 एंड 16 में विच टाइप ऑफ चार्जर इज कमिंग? लाइटनिंग और सी? व्हाई इट इज कमिंग विथ सी? रिएक्टिव, इट इज रिएक्टिंग टू द एनवायरमेंट। यूरोपियन कंट्रीज ने, इंडिया ने नहीं, यूरोपियन कंट्रीज ने, पेरिस वो लोग ने फोर्स डाल दिया एप्पल पे। अगर आप दूसरा चार्जर दे रहे हो, चार्जर का कॉस्ट बढ़ रहा है, वायर का हो रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, वी रिक्वायर द सी टाइप चार्जर, दैट्स इट। इफ यू आर ब्रिंगिंग सी टाइप चार्जर, योर सेल विल बी देयर इन आवर मार्केट, एल्स यू कैन नॉट सेल इन आवर मार्केट। दिस वाज द कॉन्सेप्ट व्हिच हैज बीन गिवन बाय यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन यूनियन मालूम है ना, यूरोपियन कंट्रीज, पेरिस, स्विट्जरलैंड, वो वाला क्राइटेरिया। ओके, नाउ टेल मी, इज दिस रिएक्टिव? यस, चेंज किया उन्होंने। तो मेरा क्वेश्चन है फोल्ड पे क्यों नहीं आए ये लोग? यूनिक स्ट्रेटजी, डिफरेंट स्ट्रेटजी, ए काइंड ऑफ एग्जांपल। ओके, दे हैव डिफरेंट स्ट्रेटजी और यूनिक स्ट्रेटजी, ए काइंड ऑफ एग्जांपल। Okay, they are say, he's saying they believe that we need to be unique from each other company. So my question, okay, definitely, I am also an Apple user, but I was not an Apple user. I shifted recently. Recently मतलब in 2020, कोविड के टाइम पे. It is because of प्रशांत सर and विनोद सर. उन लोग ने एप्पल का लाया. Otherwise, I was a Samsung lover since 2011. क्योंकि 2010 में मेरे पास पहला एप्पल लिया था मैंने, 3S करके एकदम इनिशियल मॉडल, और उसके बाद मेरी शादी हो गई. तो मेरे को पता चला कि भाई लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स एप्पल के बाद आई है. मतलब समझ में आ रहा है. होप यू अंडरस्टूड. तो एप्पल लेने के बाद मेरे को समझ में आया कि भाई यार इट्स नॉट इजी. देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू सैमसंग. ओके, सैमसंग आया, जोक्स अपार्ट, बट कमिंग ऑन द पॉइंट. ओके, सैमसंग पे आया. सैमसंग लवर था. 2020 में भाई साहब ने एप्पल लेके आया. प्रशांत सर ने एप्पल दिया. इनिशियली बोला भाई अपने को सबको एप्पल यूज करना है. मैं बोला ठीक है भाई. ओके, देन भाई प्रशांत सर ने बोला बीइंग एन एम्प्लॉय इन द कंपनी, ओके, आई कांट डू मच. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो एम्प्लॉय को ये लोग एप्पल भी गिफ्ट देते हैं. इमेजिन करो क्या जबरदस्त है. ओके, बट एप्पल गिफ्ट दिया. बोला भाई उसके बाद से फिर एप्पल पे आ गया. और उसके बाद तो मेरा इकोसिस्टम ही एप्पल का हो गया. यानी आई एम हैविंग ए टैब ऑफ एप्पल, ये एप्पल, वो जो सारा सिस्टम है, सब डेटाबेस कहां पर? एप्पल में. ओके, सब कुछ है एप्पल के पास. मैकबुक है, टैब है, आईपैड है. मतलब वो एप्पल का वो ये जिससे भी ये कनेक्ट हो रहा है यार, ये दिख रहा है. ओके, एवरीथिंग इज एप्पल. फोल्ड नहीं है. ओके, आई होप, मेरे ख्याल से इसका मतलब आपको बहुत सारा डेटा पता नहीं है. आपको पता है ये फोल्ड फोन जो है, ओके, इसका जो पेटेंट है वो किसके पास है? एप्पल. इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल एंड इट इज सोल्ड टू सैमसंग, वीवो, ओप्पो एंड अदर थिंग्स. Search on Google, you will come to know. Okay, it is registered with Apple. Fold phone, fold display is a patent which is of Apple. It is not of Samsung. और ये सारे मैन्युफैक्चर करके किसको देते हैं? सैमसंग को. टेक्निकली लॉजिक लगाओ, क्या तोड़ स्ट्रैटेजी है. अगर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया तो कहीं ना कहीं इनका सेल्स इंपैक्ट करेगा वो सेल्स पे. ओके, अल्टीमेटली उनका सेल्स हो रहा है तो इनका तो प्रॉफिट बढ़ ही रहा है ना, बिकॉज उसका मैन्युफैक्चरिंग कौन करके दे रहा है? ओके, एप्पल. उनकी पूरी यूनिट्स है जो मैन्युफैक्चरिंग करके दे रही है. पेटेंट का पैसा ले रही है. ओके, बात खत्म. आप इमेजिन करो. आपको और मुझे नहीं पता. रीजन सिंपल है, बिकॉज वी आर नॉट इनटू दैट एनवायरनमेंट. हमारे लिए तो फोल्ड जिसने निकाला उसने निकाला. एप्पल बोलता मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरा जब तक इमेज है तब तक आई एम नॉट वरीड. एंड दूसरी जगह से मेरा प्रॉफिट चल ही रहा है. तो प्रॉफिट हो. अरे पेटेंट का यू डोंट, मतलब यू आर नॉट अवेयर अबाउट द नंबर्स ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू. तो नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर. व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, सपोज I will be reacting, I will be doing the analysis in the market. After analysis, I will be bringing a product. That for sure. But, okay, or if there is some change, I will bring that change also. Example, C port leke aaya Apple. That is basically what can be done. But my question is, what about my know-how? What about my technical knowledge? Okay, this is called, always this concept is called abundant strategy elements. What it is called? Abundant strategy elements. वापस ये कौन सा word है? Abundant strategy elements. यानी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ये मेरे abundant चीजें हैं.
अबंडेंट मतलब जो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास टेक्निकल नो हाउ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स. अगर मैं अभी एनालिसिस करता हूं एंड देन आई एम ब्रिंगिंग ए प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव. But what about my experience? Experience is not a part of proactive. Experience is called as abundant strategy element. Abundant strategy element. Okay, this is the concept which you need to be aware. That's it. उतना point ध्यान रखना. तो अगर मैंने आपको कभी बोला आज मेरे पास ये है, आज मेरे पास ये है, आज तो what is a logic? It is a proactive, reactive? No, it is a strategy element, but it is called a abundant strategy element. I hope ये point clear है. What is the meaning of abundant strategy element? यानी आपके पास पड़ा हुआ है. ओके ये प्रोएक्टिव में भी यूज कर सकते हो, रिएक्टिव में भी यूज कर सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है. ओके इट इज नथिंग टू डू विथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, बट मेक श्योर इफ आई एम सेइंग आई एम डूइंग सम एनालिसिस, इट विल बी कॉल्ड एज प्रोएक्टिव. सम चेंज हैपन एंड आई अडॉप्टेड इज कॉल्ड ए रिएक्टिव. ओके two things we have discussed yesterday. If you remember, strategy should be flawless. Strategy can be flawless. We have discussed this point yesterday. Strategy can be flawless? No, not at all. तो strategy cannot be flawless. क्या अरे strategy में कितना भी रहा तो कहीं ना कि अरे अगर flawless होती तो मां कसम reactive लगता ही नहीं ना. Why we require a reactive study element? Why we require a reactive study? Because there can be a flaw in study. Why there can be a flaw in study? Because we are doing analysis of environment. And environment is static or dynamic? बात खत्म. That's it. That is the phase you need to understand. तो boss, you need to understand. Strategy can never be flawless. Okay, can strategy replace management? Okay, so never ever at all. Okay, we have discussed this also, that strategy is a concept which can never replace a management. तो management आपको लगेगा ही, यानी एग्जांपल आप बोलोगे मेरे पास बहुत तोड़ स्ट्रेटजी है, लेकिन वो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, सारी चीज करने के लिए कौन लगेगा? मैनेजमेंट. आई होप ये पॉइंट क्लियर है. तो ठीक है, अपने एक बार नोट्स में आ जाइए, नोट्स में आ जाइए, पेज नंबर 1.2 पे आ जाइए, पेज नंबर 1.2 पे आइए. ओके, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के नीचे आपने लिख दिया, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड बाय एट विच लेवल्स? 3 लेवल्स. कौन से 3 लेवल्स? मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म लिखोगे. कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल. आराम से लिखा, फुल फॉर्म लिख लो एक बार. मैंने कल लिखने बोला था, लिखा तो ठीक है, नहीं लिखा तो अभी लिख दो. कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल. कॉमा कॉमा करके मत लिखना, एक के नीचे एक लिखना, मेरे को उसके आगे कुछ लिखाना है. कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल. नाउ टेल मी हु आर स्पेशलिस्ट? हु आर स्पेशलिस्ट? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल. फंक्शनल लेवल. हु आर डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट? बिजनेस लेवल, डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट. मां कसम, आई विल डू तांडव. ओके, विच लेवल? फंक्शनल लेवल ओनली. जब मैं स्पेशलिस्ट बताऊंगा तो functional. Okay, who is also called as divisional manager? Division and functions are different. अच्छा, example, do you remember ये जब मैंने समझाया था तो which diagram I have drawn? Which chart? Tata Group. Tata Group, if remember, everybody is aware. Tata Group divided into example 3 कंपनी ले लो. Tata Car, Tata Motors, Tata Steel, Tata Consultancy. Everybody? पक्का? सर क्या वो डायग्राम बनाओ? अभी मत बनाओ, आगे आने वाला है बहुत कुछ, बस अभी एक स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं. तो टेल मी, टाटा ग्रुप कौन सा मैनेजर? टाटा ग्रुप जनरल नाम, इतना अपने जो नाम है, एवरीबॉडी अपने जो नाम है, कॉर्पोरेट लेवल. ओके, टाटा मोटर्स का हेड, बिजनेस लेवल. टाटा स्टील का हेड, बिजनेस लेवल. फंक्शनल लेवल कैसे हुआ यार? बिजनेस लेवल. टाटा कंसल्टेंसी हेड, बिजनेस लेवल. टाटा मोटर्स में प्रोडक्शन हेड, functional level. तो production head will be an engineer in production. तो who is specialist here? Functional level. Okay, help me out. Tata Motors का head कौन रहेगा? Business level. But who is specialist? He is specialist in everything. Therefore उसको मैंने और एक नाम क्या दिया था? General manager. कौन सा manager? General manager मतलब he is expertise in everything. Okay, जैसा नहीं है वो production में expertise है. हम लोग किस में expertise होने वाले हैं? Okay, नहीं. After becoming a chartered accountant, you will be expertise in which areas? ओके, फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स वैक्स का एक्सपर्टीज अपन नहीं है, अपने इसमें बेसिक है, उसके साथ और एडिशनल आपको लगेगा. टैक्स का आप जितना पढ़ रहे हो वो भी कम है. ओके, आप बोलोगे मां कसम सर वो भी कम है. यस भाई. ओके, टैक्स के एक्सपर्टाइज में मतलब टैक्स के एक्सपर्टाइज मतलब टैक्स का एक कोडिंग है अपने पास, बट देयर इज मच मोर कंसल्टिंग सर्विसेज, मच वाइडर. एकदम सिंपल एग्जांपल है, क्या टैक्स के लिए और एग्जामिनेशन है टैक्स कंसल्टेंट के लिए? अ पर्सन हु हैज क्लियर्ड बीकॉम कैन आल्सो गिव अ टैक्स कंसल्टेंसी.
भाई व्हाट बेसिस, बीकॉम के बेसिस पे नहीं, इनकम टैक्स के इसमें एग्जाम है, गवर्नमेंट की एग्जाम है विच इज कॉल्ड एन इनकम टैक्स कंसल्टेंट। तो इनकम टैक्स कंसल्टेंट की वो एग्जाम देके भी मैं टैक्स कंसल्टेंट बन सकता हूं। तो अपन अकेले एक्सपर्टाइज नहीं है, अपन अकेले एक्सपर्टाइज नहीं। हाँ, टैक्स ऑडिट में अपन अकेले है। इफ यू आर डिस्कसिंग टैक्स ऑडिट राइट नाउ एज पर वट एवर एक्ट इज देयर, हु आर एक्सपर्टाइज फॉर टैक्स ऑडिट? चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट कैन बी देयर, बट अगेन टैक्स ऑडिट है ना, तो वी आर एक्सपर्टाइज ऑफ ऑडिट नॉट ऑफ टैक्स। तो टेक्निकली दैट कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट। तो अपन एक्सपर्टाइज है तो अपन कौन से मैनेजर बन सकते हैं अगर इसी लेवल पे बने तो? ओके, इसी लेवल पे बने तो अपन कौन से लेवल के मैनेजर बन सकते हैं? फंक्शनल लेवल। और अगर आपको जीएम पे जाना है तो जीएम मतलब बिजनेस लेवल पे या कॉर्पोरेट लेवल पे जाना है तो आपको खाली अकाउंट्स वाला एरिया छोड़ना पड़ेगा। आपको एक कंपनी चलाने वाला कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट कम्स ऑफ फंक्शनल लेवल एंड बिजनेस लेवल। तो बिजनेस लेवल इज द पर्सन हु इज कॉल्ड जीएम। जीएम का फुल फॉर्म जनरल मैनेजर। अच्छा, कॉर्पोरेट लेवल टाटा ग्रुप वाला हेड विल आल्सो बी जनरल मैनेजर। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मेरे को बताओ तीनों में से कौन डिविजनल मैनेजर बोला जा सकता है? बोला जा सकता है, नाम और एक दिया जा सकता है डिविजनल मैनेजर। तीनों में से कौन डिविजनल मैनेजर बन सकता है? बिजनेस वाला। Why business वाला can be a division manager? Because he is taking care of one division. Which division? Motor division. Which division? Steel division. Which division? Software division. I hope you are getting the point. तो this is also called as, उनके नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखना। ओके, तो कॉर्पोरेट लेवल को और बिजनेस लेवल को हम और एक नाम देंगे, एक है जीएम, इधर रहेगा जीएम और डीएम। व्हाट इज जीएम और डीएम? जनरल मैनेजर और डिविजनल मैनेजर। तो इसके आगे आप लिखोगे जनरल मैनेजर, इसके आगे आप लिखोगे जनरल मैनेजर एंड डिविजनल मैनेजर। जनरल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर। और इसके आगे और एक क्या आ जाएगा? फंक्शनल के आगे क्या आ जाएगा वर्ड? स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट। Specialist who are involved in strategy formulation. Okay, who are involved in strategy formulation? Only corporate level. मतलब लास्ट 2 दिन का तो मां कसम खड्डे में गया। Who are developing strategies for companies? All three. Example, what are the strategies developed by him? नाम 2 दिन से लगातार last 2 days I am explaining this. What are the strategies he is doing? ऑनलाइन पढ़ लो, कोई तो बताओ। ओके, पहला पॉइंट होगा स्टेबिलिटी। मेरे सीक्वेंस से ही जाने का भाई, स्टेबिलिटी उसका लॉजिक्स है, वो आज नहीं समझेगा लेकिन आफ्टर 15 days विल कम टू नो भाई वो सीक्वेंस से याद रखने, आंसर रखने के तरीके हैं। तो फर्स्ट विल बी स्टेबिलिटी, सेकंड इज एक्सपांशन, थर्ड इज रिट्रेंचमेंट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एंड फोर्थ विल बी कॉम्बिनेशन। ओके, चलो 1-2 एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेता हूं इसमें वापस। कोको कोला का कोक का बिजनेस, कोक मतलब मालूम है ना, सोडा ही होता है। ओके, एक्चुअली वो पानी बेच रहे हैं, पानी में खाली सोडा डाल के बेच रहे हैं, बस वो 25 रुपए का आता है। टेक्निकली वो बनने का कॉस्ट बहुत कम होगा, मार्केटिंग कॉस्ट अगेन गोज ऑन, बट वो सोडा का बिजनेस, कोको कोला का सोडा का बिजनेस, सोडा, ब्लैक सोडा। तो ये बिजनेस कौन से, इसमें कौन सा, ये लोग जो स्ट्रेटजी यूज कर रही है कौन सी स्ट्रेटजी है? एक्सपांशन है, स्टेबिलिटी है, या रिट्रेंचमेंट है? स्टेबिलिटी। दिस इज स्टेबिलिटी। दे आर जस्ट प्रिजर्विंग देयर मार्केट शेयर। वो अपना मार्केट शेयर मतलब किसी और को दाने नहीं दे रहे। और आपको मालूम होगा थम्स अप, कोको कोला, ये सब एक प्रोडक्ट के, एक कंपनी के ब्रांड्स है। हाउ एक्चुअल इज देयर। बाकी अल्टीमेटली वो कंपनी किसकी है, वो प्रोडक्ट किसका है? कोको कोला। पेप्सिको के अलग है। बस आपको कैसा चाहिए, अगर आप शक्कर वाला कॉन्सेप्ट पीते हो तो पेप्सिको के पास जाइए, और विदाउट शुगर वाले कॉन्सेप्ट, विदाउट शुगर मतलब ऐसा नहीं है पर स्ट्रॉन्ग वाला, विदाउट कम शुगर वाला, देन यू कम टू द कोक। ओके, अगर पेप्सी पियोगे तो आपको समझ में आएगा स्वीटनर ज्यादा है, और अगर आप कोक पियोगे तो स्वीटनर कम है, और थम्स अप पियोगे, ओके मालूम है ना वो थम्स अप वाला कॉन्टेक्स्ट। तो ऑल थिंग्स, तो ये अप्रोच क्या है इनका? स्टेबिलिटी। सेकंड वाला कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक एग्जांपल, स्टेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट के बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आता है एक्सपांशन और रिट्रेंचमेंट। आपको मालूम है फोर्ड मोटर्स इंडिया से निकल चुके थे, मालूम है लास्ट 2 साल पहले फोर्ड मोटर ने, तो इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी यूज की? रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में भी अगर आपको याद होगा 3 पॉइंट है। अगर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में मैंने बताया था टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। क्या उन्होंने लिक्विडेशन किया? क्या पूरा वर्ल्ड में फोर्ड बंद हो गया? नहीं, लेकिन उन्होंने मुंबई क्या बोल रहा हूं, इंडिया का यूनिट बंद किया। तो इंडिया का यूनिट बंद कर दिया और उन्होंने वो सारे एफर्ट्स कोई दूसरी जगह यूनिट में लगाए, डाइवेस्टमेंट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, समझ में आ रहा है मालिक? ओके, एक रिलायंस ने कोई एक छोटी कंपनी एक्वायर कर ली वो प्रोडक्ट के लिए, कौन सा कॉन्सेप्ट है? टर्न अराउंड।
रिलायंस ने एक कंपनी को एक्वायर किया, एक्सपांशन। याद आया ना मालिक? अच्छा, जियो जब आया था, जियो स्टार्ट हो रहा था और स्टार्ट होके सब पेनिट्रेट कर रहा था अक्रॉस इंडिया में, ओके, सस्ता दे दे के। तो जियो क्या कर रहा था? स्टेबिलिटी कर रहा था, ओके, रिट्रेंचमेंट था, एक्सपांशन। जियो क्या कर रहा था? एक्सपांशन। और टाटा ग्रुप का एग्जांपल डिस्कस करें तो? नहीं, टाटा ग्रुप जिसके अंदर टाटा मोटर्स भी है, टाटा सॉफ्टवेयर भी है, टाटा स्टील भी है, कॉम्बिनेशन। कौन सा रहेगा मालिक? कॉम्बिनेशन। आई होप पॉइंट क्लियर है मालिक? अच्छा, मेरे को बताओ सिर्फ इतना, डाइवेस्टमेंट एंड अदर थिंग्स इज क्लियर? डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन में डिफरेंस क्या है? डाइवेस्टमेंट में शटिंग डाउन वन यूनिट, टेकिंग द मनी, डिलीवरिंग टू अनदर यूनिट विच इज प्रॉफिटेबल, ओके। एंड व्हाट इज लिक्विडेशन? टाटा बाय बाय, ऑल स्टोरी ओवर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। एक ऑनलाइन क्वेश्चन है सर, ये जो नो नोटबुक कॉन्सेप्ट है, ये कौन सी स्टडी है, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? टेक्निकली रिएक्टिव। सर ये रिएक्टिव स्टडी कैसे हुई? दो चीज, सबसे पहला नो नोटबुक कॉन्सेप्ट अपना नहीं था, नो नोटबुक कॉन्सेप्ट वाज विनोद सर, प्रशांत सर, मतलब प्रशांत सर ने पहले किया, फिर विनोद सर ने उसको अडेप्ट किया, फिर ये दोनों ने अडेप्ट किया, फिर मैंने भी अडेप्ट किया। तो अब सर आपने अडेप्ट, टेक्निकली जो लास्ट 2-3 बैचेस में मैंने देखा, तो उसमें ये पॉइंट आया कि आंसर लिख रहे थे अपन और टेक्स्ट बुक पढ़ते थे और आंसर लिख रहे थे। बट रिसेंटली इन May 25 के मॉड्यूल्स जो है एप्लीकेबल, अगर आप देखोगे May 25 के मॉड्यूल्स में द कॉन्सेप्ट ऑफ आंसर हैज बीन चेंज्ड ड्रामेटिकली। नाउ इफ डायरेक्टली व्हाट वी हैव रिटन हियर, अगर आप ये आंसर देखोगे जो मैंने कल लिखा है आपके साथ में, और अगर आप ये मॉड्यूल से कंपेयर करोगे, आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा, वो एक बेसिक वर्डिंग में मिलेगा। तो सर मैंने जो आंसर लिखा है वो ये आंसर है, आप इसको क्वेश्चन बैंक में देखो, आप आरटीवी में देखो, मैंने उसका कॉन्सेप्ट निकाला है। आपके जब मॉड्यूल में समझाया जा रहा है, ओके, एक कॉन्सेप्ट इधर समझाया जा रहा है, फिर इसका कुछ एक वर्डिंग कुछ अलग समझाया जा रहा है, फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, फिर कुछ वर्डिंग अलग समझाया जा रहा है, यानी देयर इज नो फ्लो। तो टेक्निकली व्हेन आई यूज्ड टू यूज द टेक्स्ट बुक, ओके, स्टूडेंट उसको याद रखता था, और पिछले अटेम्प्ट तक मैंने आपको क्या बोला, इट वाज वेरी इजी टू रटोफाई करो, बात खत्म करो। मेरे लिए तो वैसे ही था कि भैया आपको क्या करवाना है, याद करवाना है, और याद करो एंड आप एग्जाम में जाके वोमिट करके आओ, ओके, दिस वाज द ओनली पॉलिसी, सीरियसली। बट May 25 के मॉड्यूल में मैंने देखा कि भाई यार आंसर वैसे बचे नहीं है, इंस्टीट्यूट का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। एंड मैं लिटरली बोल रहा हूं, अगर आप यही लेक्चर्स जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप पिछले लेक्चर्स देखो, यू विल कम टू नो देयर इज अ बिग डिफरेंस व्हाट आई एम राइट नाउ इनटू दिस। अर्लियर आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन, भाई यार ये ऐसा आंसर है, ऐसा याद रखो, कॉन्सेप्ट है इसके, क्वेश्चन बैंक देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बट आंसर नीड टू बी रिमेंबर्ड इन द सेम वे। राइट नाउ ओके, द थिंग्स आर इन डिफरेंट वे, तो अपने को आंसर समझना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरे को बताओ, मैंने ये नो नोटबुक कॉन्सेप्ट स्टडी यूज की, वो कौन सी स्टडी थी, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? रिएक्टिव, क्योंकि एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस हुए, ओके, आरटीबी में चेंजेस हुए, मॉड्यूल में चेंजेस हुए, आंसर्स के चेंज हुए, पैटर्न चेंज हुए। भाई मेरे को समझा, अगर मैंने ये डायरेक्टली टेक्स्ट बुक रख दी और मैं आपको समझाऊंगा भी, और मैं आंसर, अपन क्वेश्चन बैंक लिखते थे, लेकिन वो क्वेश्चन बैंक है ना लिमिटेड ही होते थे ना, तो फिर वो इतना लिमिटेड लिख के फिर बाद में समझ में आया, जो जो आंसर अपने को लगता है कि भाई ये लिखाना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट हटा दो और वो अपन डिस्कस करेंगे और वो लिखना चाहिए। दिस वाज हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ नो नोटबुक कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर, ओके। लेकिन इसके जन्मदाता मेरे नजरों में अभी हाल फिलहाल है विनोद सर, प्रशांत सर, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट में नो नोटबुक आया, पर इनके लिए बहुत ईजी था बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल। अपने लिए कॉन्सेप्ट क्या था, थियरी, बट वो थियरी के कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्सेप्ट अडैप्ट हुआ। आई होप ये प्रोएक्टिव रिएक्टिव का लॉजिक, सर आप प्रोएक्टिव नहीं हो, नहीं है भाई, किसने बोला प्रोएक्टिव ही खाली सक्सेसफुल होता है? और भाई किस, मतलब देयर आर मल्टीपल डेफिनेशन है भाई, हर आदमी का अपना अपना प्रोएक्टिव रिएक्टिव का कॉन्टेक्स्ट है। अपने कॉन्सेप्ट में प्रोएक्टिव का सिंपल सा लॉजिक है, माय ऑब्जेक्टिव इज सिंपल, अपने को डिलीवर करना है सब्जेक्ट, फर्स्ट थिंग, सेकंड पॉइंट आई नीड टू डिलीवर कॉन्सेप्ट, थर्ड पॉइंट अल्टीमेटली वी नीड टू स्कोर। लास्ट रिजल्ट क्या है, मैंने आपको, मतलब आप किससे कभी भी बात करोगे ना, कितना भी कर लो, आपको रियल लाइफ में कितना भी नॉलेज आ जाए, लास्ट क्या है, ओके, एफएमएसएम का स्कोर, बात खत्म है ना कहानी। मतलब अल्टीमेटली आपको ही बोलेगा, नॉलेज लेना चाहिए अपनी रियल लाइफ में, आई नो, वो भी ले रहे हैं, मैं नहीं बोल ही नहीं रहा हूं। अभी एग्जांपल मेरे को बताओ, सिंस मॉर्निंग लास्ट हाफ एन आवर में आपको एक पहला नॉलेज तो मिला ही होगा, भाई एप्पल इज अ रजिस्टर्ड पेटेंट फॉर अ फोल्ड फोन, ओके, भाई नॉलेज आ रहा है, पर ये नॉलेज ये एग्जाम में थोड़ा ना आएगा। नॉलेज कुछ हद तक ठीक है अपने लिए, जब समझ रहे हैं आप, एग्जांपल समझ रहे हो, स्ट्रैटेजीज ताकि यूज करेंगे, अच्छा सर इसका मतलब अपने को ये भी समझ में आएगा कि अपन ऐसा कर सकते हैं फ्यूचर में, कुछ पेटेंट अपन रखेंगे अपने पास, और पेटेंट मां कसम अपन देंगे सबको, तुम यूज करो, प्रोडक्ट को तोड़ करो, प्रोडक्ट को लॉन्च करो, प्रोडक्ट को बेहतर बनाओ, हम उसको पेटेंट कॉपीराइट अपने पास रखेंगे, यानी पेटेंट का जो भी पैसा होगा विल बी फॉर अस, बाकी प्रोडक्ट विल बी मल्टीप्लाइंग। बट दिस कॉन्सेप्ट अगेन कम्स इनटू पिक्चर कि भाई एग्जाम में अगर आया स्ट्रेटजीज प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, आंसर शुड बी दिस।
बट अलॉन्ग विद दिस आंसर व्हाट आई टोल्ड यू, अगर ये केस स्टडी में आया तो कैसे लिखोगे आंसर? अपन जैसे चैप्टर एंड करेंगे अपन देखने ही वाले वॉल्यूम 2 का पॉइंट, लेकिन कैसे आंसर लिखोगे? कल क्या बताया था एंड करते वक्त? मैंने क्या बताया था एंड लेक्चर में? बताया था मैंने, अगर एक केस स्टडी आया एबीसी लिमिटेड है और इनकी स्टडी कैसी होनी चाहिए, क्या करोगे? क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? सबसे पहले अपन केस स्टडी का कॉन्सेप्ट लिखेंगे और वो प्रोएक्टिव क्या करता होगा उसके मसाले में अपन लिखेंगे भाई साहब इसने प्रोएक्टिव नहीं किया। अच्छा एग्जांपल मेरा ही ले लो, आपको ये मालूम पड़ा अमित अदर इज नॉट डूइंग एनीथिंग, अमित अदर ने बाय एनवायरमेंट में चेंजेस हुए, उसके बाद अमित अदर ने अडेप्ट किया। ओके अब बताओ अमित अदर की स्ट्रेटजी कौन सी है? रिएक्टिव। और बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए? बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए? ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव। पर आंसर इतना ही लिखोगे क्या? तो व्हाट इज ए थियरी, व्हाट यू विल राइट थियरी? थियरी लिखते वक्त आपका स्टार्ट यही रहेगा, लेकिन जब इधर लिखोगे तो प्रोएक्टिव एलिमेंट में आप यहां पर ये लिखोगे अमित अदर नेवर डज द एनवायरमेंट एनालिसिस व्हिच ही शुड एम्फसाइज नाउ so that he will become a blend of proactive reactive. I hope you are getting the point. Reactive लिखते वक्त यही मसला आएगा, लेकिन साथ में क्या ऐड करोगे? अमित अदर इज ऑलरेडी रिएक्टिंग टू द एनवायरमेंट, चेंजेस ला रहा है। ओके लास्ट में कॉन्सेप्ट में आपका कंक्लूजन आएगा, अगर इफ अमित अदर वांट टू बी सक्सेसफुल ही नीड टू बी ए ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव। ये थॉट प्रोसेस है और ये थॉट प्रोसेस आईसीआई का है विच हैज बीन चेंज। और आप इसको वाउच करना है तो अभी वेबसाइट पे हाल फिलहाल टिल जनवरी अटेम्प्ट है तब तक you have both the modules. Which module? Both the module जो जैन का है एंड मे का है, मे ऑनवर्ड्स है, मे और सितंबर अगले जैन तक सेम मॉड्यूल है। ओके मे 25 का मॉड्यूल और जैन 25 का मॉड्यूल, यानी विच इज ओल्ड सिलेबस मॉड्यूल, मतलब ओल्ड सिलेबस मतलब ओल्ड मॉड्यूल। अब क्वेश्चन बैंक देखो, सिलेबस इज कंप्लीटली सेम, नो चेंज इन सिलेबस। जैन का सिलेबस, मे का सिलेबस सेम, नो चेंज, क्वेश्चन बैंक चेंज्ड। क्वेश्चन बैंक चेंज मतलब क्या? क्वेश्चन सेम मिलेगा, आंसर चेंज्ड। तो व्हाट इज एन एक्सपेक्टेंसी ऑफ आईसीआई नाउअडेज? भाई साहब दे डोंट वांट कि भाई इधर आपने जो पढ़ा वही के वही लिख के आओ, इसीलिए नो नोटबुक कॉन्सेप्ट में अभी अपन वही लिख रहे हैं जो रिक्वायर्ड है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया मालिक। तो आपको लर्निंग प्रोसेस कैसे करना है, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो लर्निंग प्रोसेस कैसे चालू करना है, तो थोड़ा सा टाइम मुझे जाने दो। ओके एक दो दिन आपके चैप्टर्स जैसे फ्लो में जाएंगे, उस फ्लो में मैं आपको समझाते जाऊंगा एंड हाउ इट नीड टू बी डन। बट राइट नाउ जस्ट रिमेंबर ओके ये कॉन्सेप्ट अपन ने याद रखना है, जो आप लिख रहे हो याद रखना है। जहां पर मैं आपको हाईलाइट करने बोल रहा हूं वहां पर मैं आपको हाईलाइट करने बताऊंगा, वो एमसीक्यू में भी आएगा या थियरी भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। तो भाई 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट यू शुड बी वेरी क्लियर, वन इज कॉर्पोरेट लेवल, वन इज बिजनेस लेवल, वन इज फंक्शनल लेवल। इसके साथ में नाम मैंने दिया जीएम, जीएम का फुल फॉर्म क्या बेटा? जीएम एंड डीएम, जनरल मैनेजर एंड ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज स्पेशलिस्ट। आई होप ये पॉइंट क्लियर है मालिक एवरीबडी? ठीक है। नाउ द टेक्निकली ओके व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट ओके ऑल 3 मैनेजमेंट, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में आइए, इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर 3 वर्ड, क्या है? साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। यानी आपका जो मैनेजमेंट होना चाहिए, स्ट्रैटेजी कितनी भी बेहतर रही लेकिन मैनेजमेंट तोड़ होना जरूरी है। Okay, if you are saying the management is not alert management, management is technically think logically like this. If the management is not a alert management, he will not do the reactions with the environment, and ultimately he will be failing it out. So management should be alert, sound, and responsible. So technically, even if your strategy is superb, even if you are proactive, then also you require a management, which is of 3 parts. Next, it must be recognized. Next, highlighting word. It must be recognized that strategy can never be. What is meaning of perfect? Perfect हो नहीं सकती, flawless. Okay, यानी आपने स्टडी बनाई, क्या उसमें एरर नहीं आएगा? आएगा। उसका कारण एनवायरमेंट, कभी भी याद रखो एनवायरमेंट। What is the reason? Environment. Environment is dynamic. इसीलिए okay, flawless and optimal. It is in very nature of study that it is flexible and pragmatic. What is meaning of pragmatic? अच्छा, flexible मतलब? What is flexible? जब चाहिए उसको चेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? रिजिड या फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल। स्ट्रेटजी कभी भी फ्लेक्सिबल होगी बिकॉज दैट इज व्हाट इज लॉजिक ऑफ रिएक्टिव। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? प्रैग्मेटिक टू टेक केयर ऑफ सडन इमरजेंसी, यानी एडेप्टिव, एडेप्टिव रिएक्टिंग, एडेप्टिव करना। ओके यानी अगर कुछ इमरजेंसी आ गई यू नीड टू एडेप्ट। तो फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव, बस एडेप्टिव की जगह वर्ड क्या आया? प्रैग्मेटिक। तो टेक्निकली वर्ड एडेप्टिव ही है। तो flexible and adaptive to take care of sudden emergency, pressure and avoid failures and frustrations. सर ये जो आपके 3 लाइन है क्या ये मुझे रटना है? Not at all.
जिधर रटना होगा आई विल बी टेलिंग यू. जैसे एग्जाम्पल रटना मतलब, प्लीज डू अंडरस्टैंड, दिस इज अ कॉमन वर्ड विच आई यूज्ड एज सच, बट रटना मतलब यू नीड टू रिमेंबर दिस आंसर. दिस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज देयर. नाउ दिस नीड टू बी यूज्ड इन एमसीक्यू. This all point will be MCQ. Example, the question will come like this, that strategy is, okay, so flawless. Strategy is flawless. True, correct or incorrect? Strategy is flawless. False. Okay, so strategy can replace the responsible management. False. Okay, strategy can be a substitute for management. False. तो आपको ये इस तरह से कॉम्बिनेशन, और ऐसा भी आ सकता है, 3 पॉइंट आ सकते हैं. Strategy is flexible. Strategy is optimal. सुन लीजिए, strategy is flexible. Strategy is optimal and strategy is वो फर्स्ट वाला replacing management. 3 पॉइंट दिए, A, B, C. Which one is correct? A 0.1 खाली, B 1, 2, 3, C 1 and 3, D 2 and 3. Only one, because strategy flexible है. Second point, strategy can never be optimal. लेकिन क्वेश्चन क्या लिखा? Optimal. और तीसरा क्या था? रिप्लेसिंग मैनेजमेंट. क्या ये रिप्लेस करेगा मैनेजमेंट? नहीं. तो इसमें से तीनों में से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट. तो कॉम्बिनेशन आपको दिया जाएगा, यू नीड टू रीड इट आउट थेरोली एंड देन कॉम्बिनेशन विल बी करेक्ट. ओके, टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस विल बी 7 + 1 इन योर पेपर. टोटल 8 एमसीक्यू क्वेश्चंस विल बी देयर इन योर सिलेबस. मतलब रियल लाइफ में 8 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से 7 एमसीक्यू होंगे 2-2 मार्क के, और 1 एमसीक्यू होगा 1 मार्क का. इस तरह से 15 मार्क्स का एमसीक्यू आपके लिए पैटर्न रहेगा. जो 7 एमसीक्यू होंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन केस स्टडीज. 3, 4 ये कॉम्बिनेशन होगा, या तो 4, 3 ये कॉम्बिनेशन होगा, एंड 1 विल बी अनरिलेटेड और नॉट रिलेटेड टू द केस स्टडी. वॉट एवर कॉम्बिनेशन. ये कॉन्सेप्ट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो ये आपको ध्यान रखना रहेगा एमसीक्यू के लिए. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. मालिक क्लियर? ठीक है. तो यहां तक अपन ये होल्ड करते हैं. ओके, ये कहानी इधर तक होल्ड करते हैं. अब एक छोटा कॉन्सेप्ट अपन चैप्टर 2 के डिस्कस कर रहे हैं, बट बिफोर दैट मेरे को एक बार 2-3 नाम बता दीजिए. व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रैटेजीज. पहला, कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजीज के नाम बताइए. व्हाट आर द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज के नाम? स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेचमेंट, कॉम्बिनेशन. आराम से. सेकंड, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी के 3 नाम. कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस. ठीक है. ओके, नाम याद रखिए एक बार. ग्लूक एंड लॉरेंस. ग्लूक एंड लॉरेंस, GLUECK. ग्लूक एंड लॉरेंस. ओके, एंड लॉरेंस. इन्होंने निकाली पहला नाम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज. इन्होंने निकाली कौन सी स्ट्रैटेजीज? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज. ओके, तो नाम क्या है? लिखने की जरूरत नहीं है बुक में. बुक में है, लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है. आप लिखो मत, जिधर लिखाना है. मैं 100% पूरी बुक, अरे पूरा है भाई, डोंट वरी. बस मैं आपको एक बार पहले आपको अडैप्ट करा रहा हूं, फिर अपन रीडिंग कंटेंट वाला देखेंगे ना मालिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लूक एंड लॉरेंस कौन सी स्ट्रैटेजी निकाली? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज. तो मेरे को बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं एक्सप्लेन व्हाट आर द ग्लूक एंड लॉरेंस स्ट्रैटेजीज, मतलब 4 नाम. आई होप ये क्लियर. दूसरा, माइकल पॉर्टर. क्या नाम लिखा है? माइकल पॉर्टर. ये बहुत फेवरेट पर्सन रहेगा, बिकॉज मैक्सिमम नेम और मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज डिस्कशन विल बी कमिंग ऑफ माइकल पॉर्टर. चैप्टर 2 विल बी देयर पॉर्टर, चैप्टर 3 विल बी पॉर्टर, चैप्टर 5 विल बी पॉर्टर. तो 5 में से 3 चैप्टर में पॉर्टर भाई साहब है, और मैक्सिमम है, मतलब बहुत तोड़ स्ट्रैटेजीज बंदा है. तो भाई माइकल पॉर्टर ने निकाली है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज. माइकल पॉर्टर ने निकाली है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज. आराम से. व्हाट आर द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज? 3. कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस. तो अगर मैंने बोला माइकल पॉर्टर की स्ट्रैटेजीज कौन सी है? 3 बिजनेस लेवल. ग्लूक एंड लॉरेंस की स्ट्रैटेजी कौन सी है? 3. फंक्शनल स्ट्रैटेजीज अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग, जो भी फंक्शन के नाम है ना वो लिख सकते हो आप. मैंने अगर बोला भाई फंक्शनल स्ट्रैटेजी के एग्जांपल बताइए, 3 नाम कौन से हो सकते हैं? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, ओके, HR, ये फाइनेंस. दिस कैन बी स्ट्रैटेजीज, बट विच लेवल? फंक्शनल लेवल. ठीक है. अगर मैंने आपको बोला ग्रैंड स्ट्रैटेजी, मैं सारे नाम बता रहा हूं, एकदम याद रखना. ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, बहुत बड़ा. ओके, इट इज विच स्ट्रैटेजी? 3 में से कौन सा लगता है? कौन सी स्ट्रैटेजी होगी? कॉर्पोरेट लेवल. डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, जिससे मुझे डायरेक्शन मिलेगा, कॉर्पोरेट. ओके, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. एवरीबॉडी क्लियर? तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के कितने नाम है? मतलब rather than I will ask reverse way, stability, expansion, retrenchment, okay, or combination will come under in which names? Corporate level studies, Gluck and Lawrence, grand strategies, directional strategies. 4 नाम क्लियर है मालिक? एक बार 4 नाम रिपीट करते हैं. कॉर्पोरेट, ग्लूक एंड लॉरेंस, ग्रैंड स्ट्रैटेजी, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज.
ओके, सेकंड नाम बिजनेस और स्ट्रेटजीज और माइकल पोर्टर स्ट्रेटजीज. कौन सा? माइकल पोर्टर. अब और एक नाम समझा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए स्ट्रैटेजी. ओके, किसके लिए स्ट्रैटेजी? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. एंड एनीबॉडी हर्ड द वर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? ओके, अपोजिट से ज्यादा. अपोजिट मतलब कौन? कॉम्पिटिटर. अगर कॉम्पिटिटर से ज्यादा मार्केट शेयर आपके पास है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. बट मेरे को बताओ, मेरे इंडस्ट्री में सिर्फ मेरा एक ही कॉम्पिटिटर होगा या मल्टीपल कॉम्पिटिटर होंगे? तो फिर किससे ज्यादा? ओके, किससे ज्यादा? अगर मैं इसको टेक्निकली बता रहा हूं, ए बी सी डी, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल. ओके, अब मेरे को बताओ, मैं किससे ज्यादा होना चाहिए तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोला जाएगा? एक इंडस्ट्री है जिसमें हम चारों कॉम्पिटिटर है, किससे ज्यादा होना जरूरी है? मैं ए हूं, किससे ज्यादा जरूरी है ज्यादा होना? बी सी डी, तीनों से ज्यादा. पर तीनों से ज्यादा मतलब टेक्निकली ज्यादा कैसे होएगा? मतलब ये पॉइंट है, एक रैंकिंग होगी, रैंकिंग. तो इसके लिए एक थियोरेटिकल आंसर याद रखिए. फर्स्ट थियोरेटिकल आंसर, व्हाट इज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मींस यू आर हैविंग एन मार्केट शेयर विच इज मोर देन इंडस्ट्री एवरेज. Which is more than industry average. Please do understand. Which is more than industry. If you have a market share which is more than industry average, then it is called a competitive advantage. Yani example, if we discuss about the industry average, now tell me what is the industry average in 4 cases? 100 divided by 4. Industry average कितना आ गया? 25. तो 25 से ज्यादा आया तो competitive advantage. I hope everybody clear. तो technically अगर मैं ऐसा बोलूं, 32% इसके पास है, 30% इसके पास है. ओके, ये 62 हो गया. फिर 20% इसके पास है, 20% इसके पास है, 20 नहीं, 25% इसके पास पकड़ते अपन. 25% कितना हो गया अभी? 87 ना, और ये 13% है. तो मेरे को बताओ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसके पास है? खाली ए के पास है. ए और बी, ए और बी. टेक्निकली ए और बी हो गया ना, बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? More than industry average. Now what is the industry average here? 25%. और 25% ये कंपेयर करेंगे तो अपन को 2 जन मिल गए. This can never be a solution that 2% is having competitive advantage. It can be only one. जंगल का एक ही शेर हो सकता है. ओके, competitive advantage सिर्फ एक ही के पास हो सकता है. तो theoretically तो अपन गलत जा रहे हैं. तो टेक्निकली इसको कैसे याद रखना है? कॉम्पिटिटिव टेक्निकली मतलब अपन कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? जो सबसे लोएस्ट मार्केट शेयर होगा या इग्नोरेंट मार्केट शेयर होगा उसको डिलीट हो जाता है. ओके, यूजुअली ये कैलकुलेशन का तरीका होता है. एंड देन ओके, अब मैं बोलूंगा इंडस्ट्री में खाली 3 जन है, क्योंकि ए के लिए डी मैटर ही नहीं करता है. क्योंकि ए जब कंपीट करता है तो क्या ध्यान में रखेगा? अरे 10-12% मेरे लिए मैटर नहीं करता, ये 10-12% कभी भी शिफ्ट हो जाएगा. लेकिन जो बाकी 30 और 25% है, ओके, दैट इज मार्केट शेयर विच विल बी टारगेटेड बाय हुम? ए. अच्छा, मेरे को बताओ, ए को 2 काम करने हैं. पहला, 32% से जाना नहीं चाहिए. 32% वो किसके पास नहीं जाना चाहिए? बी और सी. और एट द सेम टाइम ये जो बी और सी के 2 जन हैं वो किसके पास आने चाहिए? ए के पास. दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क. और मेरे को बताओ बी की स्ट्रेटजी क्या होगी? फिर बी भी तो यही सोच रहा होगा. बी भी तो बी शांत होना, नहीं उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है, तो आई विल नॉट डू एनीथिंग. ऐसा होगा क्या? तो बी भी क्या सोच रहा होगा? भाई 30% मेरा जाना नहीं चाहिए. ओके, बट एट द सेम टाइम इन लोग के शेयर मेरे पास आने चाहिए. दिस इज समथिंग लाइक विच इज हैपनिंग. तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक पॉइंट ऑफ टाइम अपन ने कैलकुलेट कर दिया कि आज मुझे एडवांटेज है, लेकिन पूरी जिंदगी भर एडवांटेज रहेगा ऐसा नहीं होता. एडवांटेज में शिफ्ट. तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने पास एक ही बार आना चाहिए या कंटिन्यूस रहना चाहिए तो बेस्ट है. इसको वर्ड याद रखना, सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो मेरे को एक लास्ट और एक वर्ड दे दो. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों आएगा आपके पास? मेरे को बताओ, ए के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से 2% मार्केट शेयर ज्यादा है? टेक्निकली अभी इसको थोड़ा सा और रिलेवेंट बना देता हूं. ये थोड़ा सा मतलब ये डिस्कशन करने में था. ओके, ए के पास ऐसा हो सकता है 50% मार्केट शेयर होगा, बी के पास 30% मार्केट शेयर होगा, सी के पास 10% मार्केट शेयर होगा या 15% होगा मार्केट शेयर, और डी के पास 5%. एक है रफली एग्जांपल. व्हाट इज अ रीजन व्हाई ए इज हैविंग 50% मार्केट शेयर? स्ट्रेटजी ओनली. ओके, अच्छा, तो इसका मतलब बी के पास स्ट्रेटजी नहीं है. अच्छा, बी बिना स्ट्रेटजी का काम कर रहा है कि कर रहा है स्ट्रेटजी के साथ? अच्छा, वापस आते हैं एक एग्जांपल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? रिपीट. आराम से. मेजर मार्केट शेयर आप बोलोगे तो टेक्निकली आपको 50% के ऊपर जाना पड़ेगा.
लेकिन किसी को अगर 40% है, इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर बहुत है, तो भी 40% कैन बी ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आई होप समझा मालिक। तो मेरे को बताओ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा। रिमेंबर दिस वर्ड, इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा। तो नाउ माय क्वेश्चन कम्स, टू अचीव दिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, once I achieve the competitive advantage, do you think this competitive advantage should be only for one time or it should be continuous? तो पॉइंट टू बी नोटेड, मेरा क्वेश्चन है कंटिन्यूअस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने के लिए वर्ड क्या बोला मैंने? एक सस्टेनेबल। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शुड बी सस्टेनेबल मतलब आगे भी जाना चाहिए। एग्जांपल, आज बैच में मेरे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होगा, लेकिन अगले 6 महीने के बाद नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ा है। तो मैंने स्ट्रेटजीज क्या करूंगा, तो भाई किसी और का शेयर लेने की कोशिश करूंगा ना। सेम लॉजिक विल हैपन ना मालिक, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर कंटिन्यूअस रहा, देन वी आर सेइंग इंडस्ट्री लीडर। इट कैन नॉट बी ओनली वन टाइम, अरे यार मार्केट शेयर आज बहुत भारी है और क्या, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये ओवर ए पीरियड होना चाहिए, तब जाके आपको बोला जाएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा है? सस्टेनेबल। तो क्वेश्चन को वापस रिपीट करके मेरे को कॉन्सेप्ट समझाइए। क्या ऐसा क्या कारण है कि भाई मिस्टर कंपनी ए के पास 50% है और बाकी सबके पास 30% है? सम एग्जांपल, यू मे गिव एनी एग्जांपल। व्हाट इज द रीजन व्हाई ए के पास मार्केट शेयर है? अभी एग्जांपल, एप्पल के पास, अगर एप्पल और सैमसंग दोनों के पास मार्केट शेयर अच्छे रहेंगे ना, लेकिन टेक्निकली किसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? व्हाई एप्पल? ओके सर, तो कुछ तो ऐसा होगा जो सैमसंग के पास नहीं है ना। जबकि देखा जाए तो एप्पल एंड सैमसंग, मैंने क्या बोला? सिमिलर, बट देयर इज समथिंग विच इज एप्पल इज हैविंग विच इज नॉट सैमसंग इज नॉट हैविंग। ऐसा क्या चाहिए, क्या रहेगा? ब्रांड, तो सैमसंग का ब्रांड नहीं है। प्रोडक्ट, तो सैमसंग के प्रोडक्ट खराब है। ब्लेंड ऑफ स्ट्रेटजी, ओके जिक ने बोला ब्लेंड ऑफ स्ट्रेटजी, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। सैमसंग के पास नहीं है, तो समथिंग कुछ तो है। ब्रांड, तो सैमसंग के पास नहीं है क्या ब्रांड? अरे भाई सैमसंग भी तोड़ ब्रांड है, क्या मजाक कर रहे हो यार? सैमसंग भी बहुत बेहतर ब्रांड है, कंपीटिंग ब्रांड है। स्टेटस सिंबल, ओके कस्टमर के हिसाब से स्टेटस सिंबल है, ओके स्टेटस सिंबल। ओके यार एप्पल लिया तो स्टेटस भारी है भाई, ये बड़ा आदमी है। एप्पल लिया है, एप्पल भाई बड़ा आदमी है। सैमसंग इट्स लाइक स्टेटस सिंबल, ओके ठीक है। चॉइस, कस्टमर चॉइस, तो व्हाई कस्टमर इज प्रेफरिंग एप्पल? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन व्हिच आई एम कमिंग अगेन। ऐसा नहीं सर, चॉइस है, मन किया तो खरीद रहा है, ऐसा तो ना। कुछ तो ग्राउंड होगा ना रे। एक पॉइंट ग्राउंड क्या बोला? स्टेटस सिंबल। तो कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि भाई यार अगर मैंने एप्पल लिया तो बहुत स्टेटस बढ़ेगा, विच इज नॉट देयर इन सैमसंग। ओके, तो और कुछ? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी विच इज नॉट देयर इन सैमसंग। एग्जाम्पल, अगर एप्पल की बात करें, एप्पल की, अच्छा मेरे को बताओ, अगर आपके जो लेक्चर्स है, मेरे को मालूम, मेरे ख्याल से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फाउंडेशन हो चुका है आपका, आप इंटर में हो, इंटर का जिसका किसी का ग्रुप 1 हुआ रहेगा, ओके इसको डायरेक्टली ग्रुप 2 से चालू हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। लेकिन आपको बैकअप लेक्चर्स मिलते हैं। मैक्सिमम बैकअप लेक्चर्स आपको किस पे मिलेंगे? मैक्सिमम लोगों के, मैक्सिमम फैकल्टी के। ओके आपको मेरे को बताओ किस पे मिलेंगे? ओके एंड्रॉइड पे मिलेंगे या एप्पल पे मिलेंगे? आप जैसे ही एप्पल बोलोगे बोलेगा नहीं है भाई, क्यों ऐसा? नहीं मत, बहुत जन के इसमें नहीं है। इट्स नॉट अबाउट प्राइस, इट्स नॉट अबाउट प्राइस, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्राइस। प्राइस तो ठीक है ना यार, अगर मेरे को 10 कस्टमर मिल रहे हैं और 10 एग्जांपल 10 कस्टमर्स मेरे को मिल रहे हैं एप्पल के, ओके जो बोल रहे हैं अगर आपके पास एप्पल है, एप्पल का सॉफ्टवेयर है तो ही मैं लेता हूं, नहीं तो नहीं लूंगा। तो मेरे लिए ओके ना यार, ओके 50,000 जा रहा है और 20,000 30,000 मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इट्स ओके, फेयर इनफ मेरे लिए। मेरा तो लॉजिक ऐसे ही जाएगा। लेकिन व्हाट इज द रीजन व्हाई ऐसा नहीं रहेगा मेरे लिए? लॉजिक सिंपल है। एप्पल क्या बोलता है? ओके whichever lecture you are encrypting, encrypted lectures होते हैं मालूम है ना? ओके इंक्रिप्शन है, ये इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम एप्पल पे नहीं चलाओगे। कंडीशन है एप्पल की। एप्पल बोलता है प्राइवेसी के एलिमेंट्स हमारे रहेंगे, आप इंक्रिप्शन नहीं करोगे। हम बोलेंगे यूजर को कि आपने लेक्चर कॉपी नहीं करने, आपने लेक्चर लीक किए, ओके आपको लायबिलिटी होगी, अगेंस्ट आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ये हम बोलेंगे हमारे कस्टमर को, जो हमारे कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है हमारे। इनको कस्टमर ऐसे वैसे मत समझो आप, हमारे जो एप्पल के कस्टमर है। वी विल डिस्कस लाइक दिस इज अ कंडीशन ऑफ एप्पल। इंक्रिप्शन ही परमिट नहीं करते। फिर ओवर ए पीरियड एप्पल ने इंक्रिप्शन का एक मैकेनिज्म निकाला जो खाली ओके आपके मैकबुक पे चल सकता है। यानी अगर आज आप इंक्रिप्टेड लेक्चर लेना चाहते हो और मैकबुक पे है तो देयर इज ऑप्शन अवेलेबल मैकबुक का, लेकिन आप एप्पल के फोन पे चलाना चाहते हो, इट्स अ बिग चैलेंज। क्योंकि एप्पल के फोन पे अगर मुझे कुछ ऐप डालना है, वो ऐप क्या नहीं होना चाहिए? इंक्रिप्टेड। और इंक्रिप्टेड होना चाहिए तो उनके जो टाइप्स है वो इंक्रिप्शन होना चाहिए।
तो अब मेरे को बताओ, एप्पल का प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी तोड़। अगर आपने ऐड भी देखी होगी तो वो नहीं बताते क्या प्राइवेसी, सब लोग वॉच कर रहे हैं। अगर एप्पल यूजर्स हो आप लोग तो आपको मालूम होगा, कोई भी ऐप आएगा, शुड वी सेंड ए नोटिफिकेशन और नॉट, ये क्लियरली बताया जाएगा। तो प्राइवेसी सिक्योरिटी सेकेंड पॉइंट, जिसकी वजह से कंज्यूमर इज अट्रैक्टेड। मोर पॉइंट और कुछ पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट हो गया स्टेटस सिंबल बोल रहा है। ओके, एक पॉइंट क्या हो गया, प्राइवेसी एंड। अच्छा, हम किसमें डिस्कस कर रहे हैं, एप्पल और वीवो में नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, फर्स्ट पॉइंट ये लॉजिक क्लियर है। मैं बोल रहा हूं ऐसा क्या है, इसके पास 50 है और उसके पास 30 है, वो 30 का 50 क्यों नहीं कर पा रहा है? 50 का पॉइंट, वो 50% क्या है? और क्या है एप्पल के पास? हाँ, सॉफ्टवेयर। ओके, देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर, डेफिनेटली यूजर इंटरफेस उनके बहुत बेहतर है। अगर आप व्हाट्सएप देखोगे, सैमसंग में व्हाट्सएप यूज करो और एप्पल में यूज करो, दोनों में यूजर इंटरफेस बहुत फर्क है। और एक बार एक एप्पल यूजर आ गया, उसको है ना दूसरी जगह के सॉफ्टवेयर यूज करने के तरीके ही नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि दूसरे एंड्रॉइड ऐप इज बेसिकली सिंक्रोनाइज विथ मल्टीपल लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स। एप्पल का कॉन्सेप्ट ही अलग है, इसलिए आदमी क्या हो जाता है, उसके बाद आईपैड पे शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद वो मैकबुक पे शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस इज वेरी डिफरेंट। और कुछ? हाँ, इकोसिस्टम, दैट्स अगेन यूजर इंटरफेस, इकोसिस्टम। यानी मेरा एक डेटा है, अभी एग्जांपल मैंने ये इधर लिखा हुआ है, अभी एक स्टूडेंट ने बोला, भाई मैडम ने बोला, बस सर मेरे को ये शीट भेजिए ना जो लिखी हुई है, मेरे को 1 मिनट नहीं लगेगा, मेरे को टैब में पैड में जाने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी सेव होगा, मैं फोन के थ्रू ये शीट भेज सकता हूं। वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज ऑफ एप्पल क्लाउड। तो मैं जो इधर स्टोर कर रहा हूं, ये सारा किधर डेटा स्टोर हो रहा है? क्लाउड। मैं फोन से वो क्लाउड पे जाके, मतलब वो ऐप पे जाके, वो इनका जो फाइल मैनेजर है उसमें जाऊंगा, ये फाइल का जो नाम है वो डाउनलोड किया, इस पे आ गया और मैं शेयर कर दिया। वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट, पहले ये नहीं होता था इजीली, ठीक है। और कैमरा 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 कैमरा, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट, एप्पल ने बहुत सारे कैमरे रिप्लेस कर दिए। ओके, अब ये जो आपने पॉइंट्स बताए, एक है बेटर ब्रांड वैल्यू। नाउ दिस कैन बी वर्ड यूज्ड, यू कांट से ब्रांड बट बेटर ब्रांड वैल्यू, यानी कॉम्पिटिटिवली ब्रांड किसका बेटर है? एप्पल, क्योंकि आपने क्या बोला, स्टेटस सिंबल। तो अब इन सब वर्ड को हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऐसा खाली एप्पल के पास है, सैमसंग के पास नहीं है। कान खुले हाँ एवरीवन, ऐसा कुछ एप्पल के पास है, किसके पास नहीं है? सैमसंग। इसको हम बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। व्हाट इज टोल्ड? तोड़ नहीं, कोर, CORE, कोर कॉम्पिटेंसी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी, आई एम कॉम्पिटेंट enough, you are competent enough, but there is something which I can do better than you, is called core competency. If anything I can do better than my competitor, it is called core competency. तो मेरे को बताओ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कान खुले, मेरे को वापस चाहिए, आवाज नहीं आ रही है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। वो एक ही बार आना चाहिए या सस्टेनेबल होना चाहिए? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल? कंटिन्यूअस। ये सस्टेनेबल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कोर कॉम्पिटेंसी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी? अ कॉम्पिटेंसी विच इज यूनिक देन माय कॉम्पिटिटर। वापस आने चाहिए। ओके, वापस मेरे को क्या चाहिए? मेरे को बताओ, मेरे को बिजनेस में क्या चाहिए? अच्छा, मेरे को बिजनेस में मार्केट शेयर चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट शेयर को क्या बोल रहे हैं हम लोग? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कम मार्केट शेयर चाहिए या ज्यादा चाहिए? तो मार्केट शेयर ज्यादा को नाम क्या दिया अपन ने? नहीं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वन टाइम चाहिए या सस्टेनेबल चाहिए? सस्टेनेबल के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या? यूनिकनेस कंपेयर टू माय कॉम्पिटिटर। यानी ए और बी में कुछ तो यूनिकनेस होगा। किसके पास? ए के पास, जिसकी वजह से लोग किसके पास जा रहे हैं? ए। अभी और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सुन लीजिए। इट मे हैपन दैट ए में गिव सबसे सस्ता, ए में गिव सबसे, इट मे हैपन दैट सबसे गिविंग सबसे सस्ता इज ऑल्सो ए कोर कॉम्पिटेंसी which is not be possible with other. Parle-G, Maggi, do they have a core competency? Yes. मेरे को बताओ, क्या मैगी जैसे और कोई दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं है? टॉप रेमन वगैरह आपने देखा होगा, बीच में तो मैगी का ब्रांड भी इंपैक्ट हुआ था, क्योंकि मैगी पे बैन लगाया हुआ था। फिर भी मैगी वापस बहुत तोड़ उठ के आया ना। ऐसा क्यों था? क्योंकि मैगी के पास क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी। पहला पॉइंट है उसका मसाला, दैट इज कोर कॉम्पिटेंसी, समथिंग यूनिक देन अदर। दूसरा सिनेरियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैगी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? ओके, अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे को बताओ अक्रॉस इंडिया में कौन से भी कोने में जाओ, मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूं, बाहर भी जा सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, पर अपन इंडिया तक ही सीमित रखते हैं। अक्रॉस इंडिया कोई भी कोने में जाओ, मैं आपको बता रहा हूं, आपको पार्ले-जी मिल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं मैगी मिल जाएगा। दूसरी चीजें मिलना थोड़ी सी मुश्किल होगी। आप उत्तराखंड के एक एक्सट्रीम एंड में जाइए,
अब वो लद्दाख के एक्सट्रीम एंड में जाइए, आई एम टेलिंग यू व्हाट यू विल बी गेटिंग, मैगी। डेफिनेटली उसके अंदर लोग की चॉइसेस अलग हो गई है, चॉकलेट मैगी, वो मैगी, मतलब आई डोंट नो, मतलब वो तो इरिटेटिंग लगता है। ठीक है, कुछ हद तक वेजिटेबल मैगी इज ओके, वेजिटेबल के मैगी मतलब वो टमाटर डाल दिया तुमने, मटर डाल दिया, इज फेयर इनफ। बट उसके अंदर चॉकलेट, थम्स अप मैगी, मतलब वो इरिटेशन का पीक है। पर दैट इज एन अगेन इनोवेशन विच इज नोबडी इज, इट इज लाइक सिपलाइन, कल वाला कॉन्सेप्ट, ग्लास का मास्क। ठीक है, वो कुछ लोग जो बोल रहे हैं भाई यार बहुत यूनिक है, लेकिन यूनिकनेस उन तक ही है। तो मेरा क्वेश्चन, ओके, मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, कोर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या? कोर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या? यूनिकनेस ओवर कॉम्प्यूटर। तो मेरे को बताओ, पार्ले जी अक्रॉस इंडिया मिल रहा है, क्या उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है? दैट इज अगेन कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, अब मैगी का भी एग्जांपल, दैट इज अगेन ए कोर कॉम्पिटेंसी। आई होप एवरीबॉडी क्लियर विद दिस पॉइंट। आवाज नहीं आ रही रे? पक्का? अच्छा, पिज्जा हट या डोमिनोज गए होंगे? आई नो, मतलब एवरीबॉडी विल बी विजिटिंग पिज्जा हट, डोमिनोज। अगर मैं पूना में पिज्जा हट में जाता हूं या डोमिनोज में जाता हूं, मेनली डोमिनोज, आज के डेट में डोमिनोज बहुत कंपीट कर रहा है पिज्जा हट को। डोमिनोज में जाता हूं, डोमिनोज में मैं एक कुछ टेस्ट करता हूं पिज्जा, कोई तो एक फ्लेवर का पिज्जा टेस्ट करता हूं। ओके, चीज बस पिज्जा एक फ्लेवर का टेस्ट कर लिया मैंने। अब मैं एग्जैक्टली मुंबई जाता हूं, मुंबई के डोमिनोज में जाता हूं, क्या मुझे टेस्ट सेम मिलेगी? मैं उत्तराखंड के डोमिनोज में जाता हूं, क्या मुझे टेस्ट सेम मिलेगी? वापस आई एम रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू इंडिया, बिकॉज इधर के फ्लेवर ऐसे है, बाहर के डोमिनोज में जाओगे बहुत अलग लगेगा, लेकिन टेक्निकली फ्लेवर सेम मिलेगा। दिस इज अगेन कॉल्ड ए कोर कॉम्पिटेंसी। भाई दिस कैन बी अप्लाइड अक्रॉस इंडिया। यानी अब मेरे को बताओ, क्या उनके पास शेफ बहुत भारी है या उनके टेस्ट बहुत भारी है? पिज्जा के टेस्ट। अभी अगर आप बोलोगे शेफ बहुत भारी है, तो मेरे को बताओ शेफ फिर खाली एक शेफ सब जगह रह सकता है क्या? तो फिर ऐसा क्या है उनके पास जिसकी वजह से टेस्ट अक्रॉस इंडिया सेम है? कोर कॉम्पिटेंसी है, मेरे को समझा, मसाला है, पर मसाला बनाने को कितना क्वांटम चाहिए वो भी तो जरूरी है ना? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, पिज्जा बनाने के लिए एक ब्रेड चाहिए, उसके अंदर चीज चाहिए, ओके, उसके अंदर टमाटर मटर सब चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन है, ये सब किस कंपोनेंट में चाहिए? ये भी मैटर करता है ना। ये एक शेफ को बहुत भारी आता होगा, बट वो एक शेफ अक्रॉस इंडिया मिलेगा क्या? तो सब जगह कैसे वो बना सकते हैं? रेसिपी, रेसिपी मतलब प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, दैट्स समथिंग व्हिच इज बेटर देन अदर। ओके, इसकी वजह से कोर कॉम्पिटेंसी होती है। तो कोर कॉम्पिटेंसी को वाइडर करना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो अमित सर आप कॉन्सेप्चुअली तोड़ पढ़ा रहे हो, ओके, कोर कॉम्पिटेंसी है, नो, दिस इज वन ऑफ द कॉम्पिटेंसी। This is one of the competency. To have a core competency, it is a group of resources which is working together. It is not only product features which is core competency. It can be a core competency. One of the point to have a core competency unique than other, you require a group of competency which is unique. And that is called core competency का concept. तो सबसे पहले प्रिंसिपली दिमाग में आज बिठा लेंगे एक कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट, मुझे मार्केट एडवांटेज चाहिए, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसको सस्टेनेबल बनाना है, ओके, सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म बनाना है, इसके लिए मुझे चाहिए कोर कॉम्पिटेंसी। और कोर कॉम्पिटेंसी ओवर ए पीरियड आती है, मेरे को आएगी। कोर कॉम्पिटेंसी के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कॉम्पिटिटर से क्या करना पड़ेगा? यूनिक। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या कल वाला एग्जांपल सिपलाइन वाला, आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर सिपलाइन, ग्लास का मास्क, क्या वो यूनिक नहीं है? नहीं है वो यूनिक? अरे कॉम्पिटेंसी यूनिक है भाई। तो क्या बंदे के पास कोर कॉम्पिटेंसी आई क्या? तो इट इज नॉट ओनली यूनिक, इट इज नॉट ओनली यूनिक विच इज क्रिएटिंग कोर कॉम्पिटेंसी, बट इट शुड डिलीवर ए वैल्यू टू कस्टमर सो दैट इट कैन बी ए कोर कॉम्पिटेंसी। यानी किसी और से यूनिक होना भी काफी नहीं है, तो यूनिक के साथ क्या होना जरूरी है? वैल्यू। किसको वैल्यू देना चाहिए? कंज्यूमर, कस्टमर। तब जाके आपको क्या मिलेगी? कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, अपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कहानी है ना, इन शब्दों के इर्द गिर्द है। तो पहले ना ये 2-3 शब्द आप दिमाग में बिठा लीजिए, जितना भी बेस कॉन्सेप्ट रेडी हुआ है उस कॉन्सेप्ट को डील करिए। ओके, ये जैसे जैसे चैप्टर में आएगा विल डिस्कस मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑन इट, बट राइट नाउ फ्यू थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्या मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए? हाँ या ना? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आने के लिए मुझे क्या चाहिए? कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, और कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाने का काम किसका होगा? एसएम का, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जब आप स्ट्रैटेजी कुछ बेहतर बनाते हो, स्ट्रैटेजी बेहतर निकालते हो, एनालिसिस करके करते हो, तो आपके अंदर क्या आती है? कोर कॉम्पिटेंसी। अब मेरे को बताओ, कोर कॉम्पिटेंसी जो मेरे अंदर आई है, यूनिकनेस, क्या ये मेरे साथ ही जिंदगी भर रहेगा या मेरा कंप्यूटर इसको कॉपी करेगा? तो मेरे को क्या करना चाहिए फिर? मेरा वापस नया करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए। This happens with Apple, this happens with all cars. कोई भी नया फीचर आया, Vivo, Oppo छोड़ेगा थोड़ा ना।
Vivo पे तो अगले दिन कॉपी करेगा. तो मेरे को बताओ, फिर मेरे पास एप्पल है और इसके पास Vivo है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फीचर्स देन? तो ओवर ए पीरियड एप्पल क्या करता फिर? इनोवेशन. डेफिनेटली 3-4 साल से इनोवेशन उनका खाली वो कैमरा छोटा करना, बड़ा करना, ओके, इधर एक बटन डालना, उधर एक बटन डालना. तो टेक्निकली वो कोर कॉम्पिटेंसी लूज कर रहे हैं, बट उनके ब्रांड वैल्यू बहुत भारी है, इसीलिए वो सर्वाइव कर रहे हैं. इट्स ओनली अ लॉयल्टी फैक्टर विच इज कमिंग इनटू पिक्चर. ओके, दैट्स द. बाकी अदर देन दैट आई एम टेलिंग यू, मैंने लास्ट 4 वर्जन यूज किए, चारों वर्जन में मेरे को डिफरेंस कुछ नहीं लगा. थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस होगा, ओके, कुछ इधर वो कुछ आ गया वगैरह वगैरह, बट टेक्निकल डिफरेंस इज बिग पॉइंट. ओके, तो माय ओवरऑल स्ट्रक्चर, मुझे बताइए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए फिर फॉलो. अब मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल पॉइंट में जा रहा है, व्हाई वी शुड फॉलो एसएम. अच्छा, व्हाट इज एन एसएम? शुड आई रिपीट राइट नाउ? नहीं ना, जरूरत नहीं ना. एसएम का मतलब इट इज ए मैनेजरल प्रोसेस, 5 स्टेजेस, याद है ना. मेरा क्वेश्चन है 5 स्टेज करके मुझे क्या मिलेगी? मेरी कोर कॉम्पिटेंसी बेटर होगी. कोर कॉम्पिटेंसी क्या मिलेगा? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. तो मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाई एसएम शुड बी फॉलोड? व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉलोइंग एसएम? टू कोर कॉम्पिटेंसी तो आनी है, पर टू अचीव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. दिमाग में क्लियर है मालिक? तो मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? ये इतना एसएम पढ़ेंगे अपन, इसका मकसद क्या है? टू ऑब्टेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. बट द प्रॉब्लम है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एक बार आ जाएगा, उसको एक बार करना है, सस्टेनेबल करना है. सस्टेनेबल करने में लॉजिक बता रहा हूं, अगर मेरे को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आए तो कुछ तो फीचर होगा. सम कॉम्पिटिटर विल कॉपी दैट फीचर. नाउ द प्रॉब्लम इज, इफ ही कॉपी दैट फीचर, डू यू थिंक आई नीड टू ब्रिंग द न्यू फीचर? यानी आई नीड टू डू द चेंजेस बेस्ड ऑन एनवायरमेंट. यानी सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम इज टू अडैप्ट विद द एनवायरमेंट. यानी सेकेंड पॉइंट क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने को क्या अडैप्ट करना है? चेंजेस इन एनवायरमेंट. तो बॉस एकदम क्लियर है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बताइए. व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? फर्स्ट, टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड सेकेंड, टू गाइड द कंपनी चेंजेस इन एनवायरमेंट. फ्यूचर में क्या चेंजेस रहेगा, इसके लिए आपको गाइड किया जाएगा. तो मेरा क्वेश्चन है, 5 स्टेजेस रिपीट करिए एक बार. स्टेज वन नहीं 5 स्टेजेस. एसएम के 5 स्टेजेस. डेवलप विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव. सेकेंड, एनालिसिस. थर्ड, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट. फोर्थ, शांति से, 4th स्टेज के बाद इंप्लीमेंट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? नहीं क्या मिलेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ओके, और ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला या नहीं मिला, या मिला हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है. तो इसीलिए 5वां स्टेज करने का क्या है? इवैल्यूएशन एंड टेकिंग corrective actions, and that will be leading you to guiding the company to adapt the changes in environment. तो कभी भी याद रखना, अगर मैंने बोला आपको एसएम के ऑब्जेक्टिव्स बताइए, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम आर देयर? 2. व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम? कीवर्ड रखो, कीवर्ड, बाकी आंसर छोड़ो एक बार के लिए. 2 कीवर्ड बोलो, फिर मैं आंसर याद रखने का पॉइंट बताता हूं. पहला है ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड सेकेंड, टू गाइड द कंपनी थ्रू द changes. To guide the company through the changes. Can we freeze this point? अच्छा, तो मेरे को बताओ क्या नए शब्द आपने आज सीखे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोर कॉम्पिटेंसी, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है. और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल. और कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब यूनिकनेस कंपेयर टू कॉम्पिटिटर. क्या ये यूनिकनेस अपने पास हमेशा रहेगा या ये कॉपी होएगा? तो हमने क्या करना चाहिए? एक बार जो यूनिकनेस है वही रहना चाहिए या यूनिकनेस और निकालने चाहिए? एक सिंपल सा लॉजिक है. आप कभी भी बोल रहे होंगे ना, सर ये कॉपी नहीं होगा, तो मैं बोल रहा हूं आपकी गलतफहमी है. एवरीथिंग इज कॉपीड इन दिस वर्ल्ड. एवरीथिंग इज कॉपीड इन दिस वर्ल्ड. बस आपको क्या करना है? अच्छा, अगर उसने कॉपी कर लिया तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड हिम? तो टेक्निकली ओके, जब वो कॉपी कर रहा होगा वो वर्जन 6 पे होगा, मैंने इनोवेशन करके वर्जन 7 पे जाना चाहिए. तो जब तक वो वर्जन 6 पे आएगा, अपन वर्जन 7 पे रहेंगे, और फिर वर्जन 7 कॉपी करेगा, और जब तक वर्जन 7 कॉपी करेगा अपन वर्जन 8. यानी अपना क्या भारी होना चाहिए? इनोवेशन, R&D. क्या बोलते हैं इसको? R&D. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ R&D? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, बढ़िया. मेरा क्वेश्चन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या मैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बोल सकता हूं? ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एसएम में कहीं पर भी आया, व्हेनेवर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वर्ड्स कम इनटू पिक्चर, व्हिच वर्ड? नहीं टेक्नोलॉजिकल वर्ड. R&D छोड़ो एक बार के लिए, अभी वर्ड दूसरा दे रहा हूं मैं. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, व्हाट इज कॉल्ड? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. डोंट assume this technological development only with IT. Technological development does not link only with it is with product. Let's take an example. Okay, I hope everybody is eating Lays और वगैरह वेफर तो खाते ही होंगे, क्योंकि अरे भाई उनका बिजनेस अपने ऊपर ही चलता है.
ओके, टेक्निकली अगर आपने लेज खाया होगा, कंज्यूम किया होगा, मेरे को बताओ, ओके, लेज में इनोवेशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है? लेज में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है? टेक्नोलॉजी वर्ड को रिप्रेजेंट करो माइंड में। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज नथिंग टू डू ओनली विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन प्रोडक्ट में इनोवेशन। तो मेरे को बताओ, लेज में इनोवेशन क्या है? फ्लेवर्स। ओके, खाली फ्लेवर्स ही रहा या भाई आलू के वेफर, बेक्ड वेफर भी बन गए? बेक्ड वेफर भी मालूम है ना, ऐसे अलग अलग है। अरे बेक्ड वेफर है, अरे इसे वेट बढ़ रहा है तो और कुछ इनोवेशन। ओके, तो अब मेरे को बताओ, अगर टूथपेस्ट की बात करूं, व्हाट इज एन इनोवेशन इन टूथपेस्ट? नमक। ओके, डायबिटीज फ्री के लिए वो शुगर फ्री, दिस इज नथिंग बट इनोवेशन। तो वर्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो जब भी अपन ने वर्ड पढ़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, व्हाट शुड बी कम इन माइंड? इन दैट इंडस्ट्री व्हाट इज इनोवेशन? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शुड नॉट बी लिंक्ड ओनली विथ, नहीं तो क्या होगा मालूम है तुम्हारे दिमाग में? क्या होगा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब? अरे यार कंप्यूटर बनाने का क्या? अरे नहीं भाई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मींस इनोवेशन। इनोवेशन। अच्छा, शर्ट में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, शर्ट पैंट ड्रेस मतलब कपड़ों में इनोवेशन क्या है? ओके, अलग अलग कलर होगा। ओके, क्या कोई ऐसे कपड़े देखे जो ब्रीदेबल है, ऐसे बोलते हो ब्रीदेबल क्लोथ्स आते हैं, या अगर चाय गिरा दे तो गिर जाएगा अपने आप ही, दाग नहीं लगेगा। देखो ना, एक कपड़ा बेचने वाला बोलता है दाग नहीं लगेगा, और भाई कपड़ा धोने वाला बोलता है दाग अच्छे है। व्हाट शुड बी डन नाउ? मतलब हम ऐसे कपड़े खरीदे जिसपे दाग लगे ताकि दाग अच्छे है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी ना किसी का तो सेल होना चाहिए। बट इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो और एक वर्ड क्या याद आया दिमाग में? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मींस इनोवेशन इन इंडस्ट्री। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। व्हाट इज कॉल्ड? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। टेक्निकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको पेज नंबर अप्रोक्सीमेटली 2.17 2.18 पे रहेगा। 2.17-18 के रेंज में रहेगा। मिला मालिक? 2.17 2.18 दोनों पेज पे है ना मालिक? ठीक है, इस पेज पे 2.18 वाले पेज पे आइए जिसमें डायग्राम बना हुआ है। आ गया मालिक? ठीक है। नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। दिस कैन ऑल्सो लिंक्ड विथ बिजनेस लाइफ साइकिल ऑल्सो। अब इसमें क्या बोला जा रहा है सुनिए। जब मैं कोई प्रोडक्ट निकालता हूं तो इसका एक लाइफ साइकिल है। फर्स्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का फर्स्ट फेज विल बी इंट्रोडक्शन फेज, यानी दिस प्रोडक्ट इज इन इंट्रोडक्शन फेज। सेकेंड फेज इज कॉल्ड ग्रोथ फेज, थर्ड फेज इज कॉल्ड मैच्योरिटी फेज, एंड फोर्थ फेज इज कॉल्ड डिक्लाइन फेज। दिस इज ए बेस फॉर अवर चैप्टर 4 अगेन। विदाउट दिस चैप्टर 4 का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लिक नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे से समझिए, कीवर्ड लीजिए। आई एम टेलिंग यू, मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली एंड एट द सेम टाइम यू आर रिमेंबरिंग द कीवर्ड्स। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन आरटीपी, इट वाज नेवर इन एग्जाम्पल टिल डेट। आरटीपी में कौन से आरटीपी में आया? एक नवंबर 23 का आरटीपी था, उसमें आया था, और एक सितंबर 24 का आरटीपी, सितंबर 24 इस आरटीपी में एग्जाम में एक बार भी नहीं आया। टिल डेट एग्जाम में नहीं आया। ये अभी जैन में आया तो मालूम नहीं, क्योंकि सितंबर 24 के आरटीपी में था। तो अपन को जैन का पेपर, अपनी जब क्लास चलेगी जैन का पेपर देखेंगे, वी विल कम टू नो वेदर सितंबर आरटीपी का क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। अगर सितंबर का आरटीपी का क्वेश्चन जैन में नहीं आता तो प्रोबेबली मई 25 के लिए इट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो सर आ गया तो वापस इंपॉर्टेंट नहीं है, होता है भाई, बट रिलेटिवली कम, रिलेटिवली अगेन। So sir, what this life cycle comes into picture? Everyone, listen carefully. There are 4 phases or 4 stages. What are the 4 stages or 4 phases? Intro, growth, maturity, decline. वापस आते हैं। Intro, growth, maturity, decline. Technically, अगर आप देखोगे एक एक्सिस जो है जहां पर सेल्स बनाया हुआ है और एक एक्सिस है टाइम बताया हुआ है। ओके, अगर टाइम और सेल्स को मैच करोगे तो पहला जब ये शुरुआत होता है प्रोडक्ट, यानी इसका जन्म होता है। ओके, देयर इज ए द प्रोडक्ट हैज बीन डेवलप्ड, द प्रोडक्ट हैज बीन रिसर्च एंड डेवलप्ड। आफ्टर दैट, ओके, इट इज योर फर्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। नाउ व्हेन आई से इंट्रोडक्शन फेज, व्हेन आई से व्हिच फेज मालिक? इंट्रोडक्शन फेज, इट इज वेरी स्लो ग्रोथ फेज। बेसिकली नोबडी इज अवेयर दैट दिस प्रोडक्ट इज देयर इन ए मार्केट. Nobody is aware. Customers are not aware. This product introduction phase requires heavy advertising. I need to make you aware. No competitor. Why no competitor? Reason simple है, nobody is aware this product has been launched. So this particular person who has done the R&D about the product need to make everyone aware about this product. Therefore, this called concept which phase? Intro phase.
सिपलाइन का भी एक इंट्रो फेज था, लेकिन सिपलाइन की गड़बड़ ये हुई, उसके बाद डिक्लाइन आ गया। ओके, क्योंकि दैट प्रोडक्ट वाज नॉट वैल्यूड बाय कस्टमर। प्रॉब्लम है उसकी वैल्यू नहीं डिलीवर करे ना। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा बोला जाता है, एक वन डायलॉग इज देयर, ओके, यू कैन, इफ यू वांट टू सेल, ओके, यू कैन सेल मिट्टी ऑल्सो, दैट फॉर श्योर, बट यू नीड टू हैव दैट स्किल सेट देन। ओके, फिर उसको वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है। वैल्यू क्रिएशन, सामने वाले के वैल्यू होना चाहिए, एंड दैट सेम थिंग विच हैपेंस। तो पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन फेज। तो इंट्रोडक्शन फेज के बाद आता है जहां पर खतरनाक सेल्स बढ़ जाते हैं, सेल्स शूट अप, फास्ट सेल, हाई ग्रोथ, everybody is aware about this product, everybody is interested in purchasing this product, and competitor at the same time, because this product demands grow, competitor comes into picture now, competition increase। इंट्रोडक्शन में कंपटीशन नहीं था, क्यों नहीं था? इंट्रोडक्शन में कंपटीशन नहीं था, क्यों नहीं था? अवेयरनेस ही नहीं था। लेकिन जैसे ही ग्रोथ फेज आया, अवेयरनेस, अरे ग्रोथ हुआ मतलब सेल्स डबल हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, नॉलेज सबको आ चुका है भाई साहब, और इसीलिए कंपटीशन बढ़ गया। अब कंपटीशन बढ़ गया और अपना भी ग्रोथ बढ़ेगा, इसीलिए ये फास्ट ग्रोथ बोलते हैं इसको। कौन सा ग्रोथ बोलते हैं? लेकिन कभी ना कभी लाइफ में ये फास्ट ग्रोथ होते रहेगा, लेकिन कभी ना कभी लाइफ में एक फेज आएगा जब ये फास्ट ग्रोथ विल बिकम स्लो ग्रोथ। ग्रोथ ही होगा, इट विल बी ग्रोथ ओनली, इट विल बी ग्रोथ ओनली, इट विल बी ग्रोथ ओनली, बट इट विल बी विच ग्रोथ? फास्ट ग्रोथ और स्लो ग्रोथ? वंस द ग्रोथ स्लो डाउन, वंस द ग्रोथ, it is not declining, it is slow down, then it becomes which phase? Maturity. So what is the difference between growth phase and maturity? How will I come to know am I that particular product is in maturity or it is in growth phase? Fast growth, fast growth, and if growth stables down, maturity. यानी एग्जांपल मैं बोल रहा हूं 10% ग्रोथ था पिछले साल, नेक्स्ट ईयर 20%, नेक्स्ट ईयर 30%, नेक्स्ट ईयर 40% ग्रोथ, आफ्टर दैट आई एम सेइंग 2% ग्रोथ। अपने को समझ में आया, हाँ भाई मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी ग्रोथ मार्केट 100 का था। ओके, अपना एग्जांपल, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर मार्केट? 100, वी आर अज्यूमिंग 100। इफ यू रिमेंबर द सेम एग्जांपल, ओके, व्हेन देयर वाज द इंट्रोडक्शन, द ओनली 1% वाज अवेयर अबाउट द मार्केट, इन द मार्केट ओनली 1% इज अवेयर अबाउट माय प्रोडक्ट। Then I did marketing, then I did awareness, okay, I create awareness, I explain everyone about the product, and people started loving it, and because of it people started purchasing it. And because people started purchasing it, competitor identified, oh my god, this product does have a market share, and they entered into it. So this phase is altogether called as growth. But out of 100, almost 90 people, 90 have purchased the product. 90 people are consuming the product, assume करो consume कर रहे हैं, and now the जो growth हो रहा था, now it is reduced to only 1%, 1 people or 2 people. Now this comes which phase? Maturity, because अभी market बचा ही नहीं ना, market is not there, and this is called which phase? Maturity. Okay, यानी यहां पर आएगा, and last phase is which phase? Decline. So what happened in decline? Growth नीचे जा रहा है, यानी अपने अभी कितने लोग खरीद रहे थे? 100 में से कितने थे? 90 वर परचेजिंग माय प्रोडक्ट, 90 का इंक्रीज हो गया, एक दो ऐड हो रहा था, 92 हुआ। ओके, अभी हो रहा है वो 80 खाली, 15 जन 20 जन निकल गए। सर निकल गए मतलब किधर गए? शिफ्ट हो, कंप्यूटर नहीं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा हूं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये प्रोडक्ट में पहला पॉइंट, प्लीज लिसन केयरफुली, इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट क्या लाइफ। ये प्रोडक्ट ओके मैं पहली बार लॉन्च किया, हाउ मेनी वर अवेयर अबाउट दिस प्रोडक्ट? 1 2, देन आई स्टार्टेड मार्केटिंग दिस प्रोडक्ट। घर घर गया, मैं बोला ऐसा प्रोडक्ट है, आप बोले नहीं पसंद नहीं आ रहा है। ओके ऐसा था, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, so I create an awareness, now people are aware about this product and they are liking it. Okay, ये कौन सा फेज हुआ? ग्रोथ। ओके, ऑलमोस्ट 90% पीपल हैव परचेज दिस प्रोडक्ट। ग्रोथ हो चुका। अब ग्रोथ के पास किसमें जाएगा? अभी मैच्योरिटी। अभी भी 2% 3% लोग खरीद रहे हैं, कौन सा फेज? मैच्योरिटी। अब खरीदना बंद कर दिया है, ओके, और अब खरीद नहीं रहे, ये कौन सा फेज आया? डिक्लाइन। तो प्रोडक्ट का डिक्लाइन फेज क्यों आया? मैं वापस बोल रहा हूं प्रोडक्ट पे, आप बोल रहे हो सर कॉम्पिटिटर आ गया। ये मेरा और कॉम्पिटिटर का शेयर नहीं चल रहा है, ये मेरा और कॉम्पिटिटर का शेयर नहीं चल रहा है, ये किसका शेयर चल रहा है? किसका शेयर चल रहा है? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो प्रोडक्ट का शेयर चल रहा है, तो इसका मतलब मेरे को बताओ पहले कितने खरीद रहे थे? अभी टोटल कितने खरीद रहे थे मेरे? 90 95, लेकिन अब 80 जन ही खरीद रहे हैं, 15 जन बंद कर दिए खरीदना। क्यों सर? क्या इनको बॉटल नहीं चाहिए? बोर हो गए तो शिफ्ट हुए रहे किसी और पे। ये आप समझो, यानी किसी और प्रोडक्ट का इंट्रोफेस चालू हुआ रहेगा। नहीं समझा? नहीं समझा? समझा? यानी बेसिकली मेरा डिक्लाइन कब आता है?
जब किसी और का इंट्रो. So if I decline, it means there is a new product, an innovation which has came in the market. Okay, so what I need to do, what is the strategy here? Okay, basically two things. Either I should modify the product and make it new, or I should बंद कर दो this product and I started manufacturing the new product. और अगर मैंने ये नहीं किया तो अल्टीमेटली कंपनी वैसे ही बंद होने वाली है, क्योंकि प्रोडक्ट डिक्लाइन होके एक दिन खत्म हो जाएगा, या तो वो प्रोडक्ट में रिनोवेशन होके वापस ये डिक्लाइन से ग्रोथ की तरफ जाएगा, क्योंकि इनोवेशन हुआ रहेगा. समथिंग लाइक दैट. दिस इज हाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो 4 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के पहले फेज बताओ आराम से, एक कीवर्ड्स उसमें डालते हैं. डोंट, मतलब मैं वापस बोल रहा हूं, डोंट हरी इट आउट इनिशियली. First adapt the keywords, first adapt the strategic words which need to be remembered. Once that is done, okay, so definitely I'm telling you, okay, so the competing point you are already aware. पूरा रिवाइज करना है तो 1.5 घंटा बहुत है, पर वो 1.5 घंटा आज नहीं आएगा, वो ओवर ए पीरियड आएगा भाई. वो कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट के बाद वर्ड जाएगा. अब आप बोलोगे सर मेरे को 4 वर्ड आ गए. 4 वर्ड आना थोड़ा ना मेरा टारगेट है. 4 वर्ड में होता क्या है ये मेन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, व्हाट आर द 4 फेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? इंट्रो, ग्रोथ, आई होप एवरीबॉडी क्लियर. तो मेरे को बताओ कहां पर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है? इंट्रो. कहां पर कंपटीशन भयंकर बढ़ गया? ग्रोथ. अपन इंट्रो और ग्रोथ पे ही बात कर रहे हैं. क्लियर है? पहले 2 पे ही, मैच्योरिटी पे मत जाइए, वापस आता हूं. कंपटीशन किधर भी नहीं, किधर नहीं, कंपटीशन ही नहीं है. इंट्रो. कंपटीशन बहुत बढ़ गया, पब्लिक को मालूम ही नहीं था प्रोडक्ट के बारे में. नाउ पब्लिक इज अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेयर प्राइस विल बी हाई? ग्रोथ और इंट्रो? इट इज इंट्रो. बिकॉज पीपल ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा था. जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्यों? ओके, इट इज इन नथिंग बट एन एक्सपीरियंस कर्व. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस कर्व? इफ यू आर अवेयर अबाउट द वर्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अगर मैं 1 प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरे को जो कॉस्ट जा रही है, और मैं 10 प्रोड्यूस कर रहा हूं, कॉस्ट जा रही है, किसमें मेरे को कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा? 10 करूंगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा. आप बोलोगे सर इसको कैसे एग्जांपल वाइज कॉस्ट पर यूनिट के साथ में बताओ. विनोद सर लेंगे वो, ठीक है, वो विनोद सर बताएंगे कि अगर मैं 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और 25,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, किसमें कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा? 25,000. ओके, एंड दैट्स वेयर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कम्स इनटू पिक्चर. एक सिंपल सा एग्जांपल है. इसी रूम में अगर मैं 10 जन को पढ़ा रहा हूं, और इसी रूम में 200-300 को जो पढ़ा रहा हूं, और इसी रूम में 500 को पढ़ा रहा हूं, किसमें कॉस्ट पर यूनिट कम होगा? 500. किसमें प्रॉफिट बढ़ेगा? 500 में. किसमें प्रॉफिट कम रहेगा? तो मेरे को बताओ कौन से फेज में कॉस्ट ज्यादा रहेगी? इंट्रो. बिकॉज वॉल्यूम ही नहीं है, सेल्स ही नहीं है ना. नहीं समझा? समझा? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट और नॉट? टेल मी व्हाई प्राइस इज हाई इन इंट्रो फेज? व्हाई प्राइस इज हाई इन इंट्रो फेज? बिकॉज देयर इज नो सेल्स, देयर इज नो मार्केट, तो कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा. बट व्हेन वी एंटर इनटू ग्रोथ फेज, डज आवर एक्सपीरियंस इंक्रीज? ओके, तो एक्सपीरियंस सेज वी कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स. वंस द प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज, कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज. आई होप एवरीबडी क्लियर विद दिस पॉइंट. पक्का? ओके, मार्केट बहुत छोटा किसमें और मार्केट ज्यादा किसमें? मार्केट इज लिमिटेड, इंट्रो. मार्केट इज वाइडर, ग्रोथ. आई होप एवरीबडी क्लियर. ठीक है, अब फेज शिफ्ट करते हैं. नाउ मेरे को बताओ ग्रोथ का रेट, ग्रोथ रेट, स्टिल नाउ इट इज ग्रोथ रेट बट इट इज स्लो डाउन. मैच्योरिटी. फास्ट ग्रोथ रेट, ग्रोथ. समझ में आया? उसको ग्रोथ ही बोलने का. फास्ट ग्रोथ, ग्रोथ. स्लो ग्रोथ, मैच्योरिटी. समझ में आया? आई होप एवरीबडी क्लियर विद दिस पॉइंट. पक्का? कंपटीशन टफ किस में होगा? ग्रोथ में या मैच्योरिटी में? ओके, ग्रोथ में या मैच्योरिटी में? ग्रोथ में टफ होगा, मैच्योरिटी में टफ नहीं होगा. ग्रोथ में टफ क्यों होगा? ओके, दिमाग चाहिए, दिमाग लगाना पड़ेगा. इन ग्रोथ फेज मेरे को बताओ नया मार्केट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना. तो अगर कॉम्पिटिटर ने एक मार्केट पकड़ के रखा हुआ है, हम एटलीस्ट नए मार्केट को तो फोकस कर सकते हैं. ओके, कंपटीशन किस में बढ़ रहा है? कंपटीशन वाइडर. कंपटीशन बढ़ किस में रहा है? व्हेन आई एम सेइंग कंपटीशन बढ़ किस में रहा है, मतलब कंपटीशन इंक्रीज किस में हो रहा है? ग्रोथ में. ओके, अच्छा, इसको एक छोटा सा ओफू देता हूं. ओफू ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. इट इज लाइक एन एग्जांपल नॉट टू बी रिटन इन एग्जाम. ओके, नाउ सपोज इनिशियली देयर वाज ओनली मार्केट ए, जिसमें 10 ही लोग थे, जिसमें अपन ने प्रोडक्ट को इंट्रो किया, पब्लिक को पसंद आया. हम मार्केट ए से मार्केट बी में गए, क्या कंपटीशन भी बढ़ गया? यस. मार्केट सी में गए. अभी ये एग्जांपल है मार्केट के, अभी सब टोटल मिला के अपन 100 लोग ही लेंगे. लेकिन व्हाट हैपन, ओके, अगर यहां पर मार्केट बी में सपोज 20 है और सी में 20 है, और ये दोनों मार्केट कॉम्पिटिटर ने खा लिए और अपने पास नहीं है, इसका मतलब मेरी लग गई क्या? मेरे पास अभी भी नया मार्केट ऑप्शन अवेलेबल है.
कितने मार्केट, टोटल मार्केट कितना है अपना 100, तो अभी भी नया मार्केट अवेलेबल है डी में, यानी इनको कंप्यूटर को इधर करवाने दो, मतलब जो करना है वट एवर दे नीड टू फोकस ऑन इट, ओके वी कैन फोकस ऑन द नेक्स्ट मार्केट। तो मेरा क्वेश्चन है कंपटीशन इंक्रीज किसमें हुआ? ग्रोथ में। अच्छा कंपटीशन किसमें नहीं था? इंट्रो। व्हाई? बिकॉज नोबडी वाज अवेयर दिस प्रोडक्ट इज देयर। बट जैसे जैसे प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ा बी मार्केट सी मार्केट में, तो कंपटीशन भी आ गया ना, ओके लेकिन कंपटीशन इंक्रीज हुआ, लेकिन कंपटीशन टफ नहीं हुआ। में टफ और इंक्रीज में डिफरेंस है। इंक्रीज मतलब नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स पीपल इंक्रीजेस कंपेयर टू इंटरफेस, बट इमेजिन नाउ डी ई एंड एफ, ये तीनों का, ये 20 का मार्केट, ये 20 का मार्केट, ये 10 का मार्केट, एवरी मार्केट हैज बीन कैपिटलाइज्ड, नाउ नो न्यू मार्केट इज देयर, व्हिच फेज कम्स इनटू पिक्चर? मैच्योरिटी। नाउ क्वेश्चन, ओके इफ आई वांट कस्टमर व्हाट आई शुड डू नाउ? इनोवेशन अगला फेज है, टर्न अराउंड मतलब डिक्लाइन आएगा तब देखेंगे, अभी क्या करूं? मैच्योरिटी में क्या करूं? मैच्योरिटी में ग्रोथ है क्या? कोई नया कस्टमर मिलेगा क्या? तो मेरा क्वेश्चन है मेरा प्रोडक्ट किसको बेचूं? जो कॉम्पिटिटर है उसके कस्टमर को अपने पास लाना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटर कोशिश क्या करेगा? वो अपने कस्टमर रिटेन करे। आप समझ रहे हो? तो कंपटीशन टफ किस में होगा? मैच्योरिटी में। कंपटीशन इंक्रीज किस में होगा? ग्रोथ में। दोनों में डिफरेंस समझा क्या? व्हेन आई से कंपटीशन इंक्रीजेस, व्हेन आई से कंपटीशन increases means number of competitors are becoming more, but when I say competition become tough, when I say competition become okay, एक दूसरे का शेयर खा रहे हैं, we are eating one other share because no market only। मेरे को बताओ नया कहां से लाऊं? आप बोलोगे सर और कस्टमर, अच्छा प्रॉफिट और कमाना नहीं है क्या? कमाना, लेकिन कस्टमर किधर है? कस्टमर किधर है? अरे नहीं यार नए पकड़ के लेके आओ सर, अरे नए तो आने चाहिए ना, नया है ही नहीं, तो मेरे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए? कॉम्पिटिटर का शेयर। तो अभी यार ये कॉम्पिटिटर दे रहा है, चल एक काम कर, तू कितने में दे रहा है वो प्रोडक्ट? ओके 100 रुपए में, 50 रुपए में आ जा। दिस व्हाट हैपेंस इन मैच्योरिटी फेज। जब कोई प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल का मैच्योरिटी आ गया, इसका मतलब कंपटीशन क्या हो गया? टफ हो गया। आई होप समझ में आया क्या कंपटीशन टफ? एंड मेरे ख्याल से तो डिक्लाइन फेज समझाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे को बताओ ओके डाउनवर्ड किस में जाएगा? डिक्लाइन। मैच्योरिटी में डाउनवर्ड नहीं है, बस वो ग्रोथ को स्लो डाउन हुआ, पर डिक्लाइन में नीचे जाएगा। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? तो मेरे को बताओ इसमें अपने को क्या करना चाहिए? क्या प्रोडक्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा? आंसर इज यस, प्रोडक्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा, या ये प्रोडक्ट में इनोवेशन करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द 4 फेजेस नीड टू बी टेकन केयर? इंट्रो, डिक्लाइन। ओके एवरीबॉडी क्लियर? जिसने पहली बार प्रोडक्ट निकाला होगा, एप्पल ने ये निकाला होगा, तो उसका कौन सा फेज था अपना लाइफ का? इंट्रो। सैमसंग कौन से फेज में घुसा? ग्रोथ में। सैमसंग इंट्रो में नहीं था। सैमसंग कौन से फेज में घुसा? इंट्रो ग्रोथ में घुसा, कंपटीशन आ गया एंड उसके बाद रहा। अब ये मैच्योरिटी की जगह मैच्योरिटी आने लग गई है, सेम दिख रहा है। मैंने आपको क्या बताया, लास्ट 3 वर्जन से मैच्योरिटी ही है, नो न्यू फीचर्स। एंड आगे शायद अगर अभी एग्जांपल, मैं आई एम सच काइंड ऑफ पर्सन दैट आई कैन एंटर इनटू, आई कैन परचेज इमीडिएटली ए न्यू टेक्नोलॉजी, बट आई हैव नेवर शिफ्ट टिल टू 16, क्योंकि मेरे को 15 और 16 में कोई डिफरेंस ही नहीं दिखा। मेरे को दिखा ही नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई हाँ बटन है ना सर, ऐसा करके कैमरा, अरे मेरे को लग रहा है ये कैमरा का ये इधर से बता पाया वो बेटर है। ओके बटन से है ना सर, ये से प्रेस करके, मालूम है ना वो बटन इज नॉट एन इनोवेशन ब्रॉस, इनोवेशन के लिए बहुत सारी और चीजें चाहिए रहती है। तो दिस कॉल्ड फॉर ए कॉन्सेप्ट दैट एप्पल इज नाउ इन विच स्टेज? मैच्योरिटी। ओके तो अभी भी मतलब अपन ग्रोथ फेज की बात करेंगे है, अच्छा सेल नहीं बढ़ रहा है क्या एप्पल का? बढ़ रहा है, लेकिन उस लेवल से बढ़ रहा है क्या जिस लेवल से आना चाहिए? नहीं। ओके दिस व्हाट कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरिटी। तो एप्पल ने अभी क्या करना चाहिए? मोर इनोवेशन, नहीं तो किधर कौन से फेज में आ जाएगा? डिक्लाइन। अगर दूसरा कोई बहुत बेहतर प्रोडक्ट देगा तो, अगर सैमसंग ने बहुत तोड़ इनोवेशन करके नया प्रोडक्ट बेहतरीन निकाल दिया, हो सकता है एप्पल वाले शिफ्ट हो जाए सैमसंग की तरफ। अगेन द पर्सन हु आर लविंग द फीचर्स, ये द पर्सन रिक्वायर्स भाई ब्रांड, मेरे पास एप्पल है, फोन है, ये रखना है तो चीज ही अलग है ना यार। लेकिन अगर कोई फीचर्स के लिए स्ट्राइव कर रहा है तो किस पे शिफ्ट हो सकता है मालिक? सैमसंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कॉन्सेप्ट पक्का समझा मालिक? एवरीबॉडी पक्का? आपका एक छोटा सा होमवर्क है, ओके ये वाला पेज का जो इंट्रो फेज 2.17 मिल रहा है, उसमें क्या लिखा है? फर्स्ट स्टेज लिखा है ना, ओके उसके 2.18 में सेकंड फेज लिखा है, थर्ड फेज लिखा है, फोर्थ फेज लिखा है, ये चारों फेज आपको रीड करने मालिक। इज द पॉइंट क्लियर? सी यू टुमारो। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा एंड देन विल एंटर इनटू एक्सपीरियंस कर्व। ओके तो की टेक अवे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको याद रखना है, कोर कॉम्पिटेंसी याद रखना है, एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हस्ता ला विस्ता।